اب بات کرو نا سے. ہاں بولو. ہلو. جی بولیے. ہاں السلام علیکم مولانا. ہاں بولیے. آپ ہمیں گستاخ بھی ثابت کر رہے ہیں اور سلام بھی کر رہے ہیں. نہیں گستاخ نہیں مولانا، بس یہ بات کچھ ایسا ہے اس میں ختم نبوت میں انکار دکھ رہا ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں مولانا. انکار شرعی اعتبار سے یہ جو سوال سائل نے سوال کیا ہے، جی صاحب. پہلے سائل کا سوال سنیے. سائل نے جو سوال کیا ہے وہ سوال دیا ہوا ہے اس میں. ہاں، اور پہلی بات تو یہ ہے، اگر گستاخی ہے تو آپ کے اکابرین نے آج تک ہمیں گستاخ کہا، کافر کہا؟ نبی کے گستاخ تو کافر ہوتا ہے. نہیں ہمیں احتیاط کر رہے ہیں صاحب. احتیاط تو کافر، نبی کے گستاخ کو کافر کہنے میں احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟ احتیاط ہے. نبی کے گستاخ کو کافر کہنا ہی سب سے زیادہ تقوی ہے، سمجھے؟ نبی کے گستاخ سے بڑا کوئی کافر نہیں ہوتا. حالانکہ دوسرا کوئی کافر ہے، مثال کے طور پر کوئی مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا، اس کو 3 دن مہلت دی جائے گی. شرعی اعتبار سے شریعت کا قانون ہے یا اسلامی حکومت اس کو 3 دن مہلت دے گا، قید کر کے رکھے گا اور اس کو اسلام سمجھائے گا. بڑے بڑے علماء محدثین کو اس کے پاس ٹھیک ہے بھیج کر. مصطفیٰ، اس کا جواب دیو صاحب. نہیں، جواب دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا دے رہا ہوں. آپ کو جو ہے مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بول کے سمجھا رہا ہوں، سنیے. اس کا جواب مشاہد. بے شک اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا پیدا ہونا شرحن محال عقلاً ممکن بھی ذات ہے. عقلاً تو عقل، جو لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں دین و شریعت میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور عقلاً ممکن ہے، کیونکہ ہر نبی کو وہ عقل قرآن شریف میں صحابہ اکرام کے ذریعہ سے سمجھنے کے بجائے وہ خود قرآن اپنے عقل سے سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر قوم کے لیے ایک ڈرانے والا. ہاں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. یہ آیات سے بہت سارے گمراہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے جب ہدایت دینے والا ہے، اب کتنے قوم کتنے جگہ بسے ہوئے ہیں، ہر جگہ تو نبی ابھی بھی ہونا چاہیے. اب یہ کیا بولتے ہیں اس کے جواب؟ سنو ذرا، ایک جنے غور سے سنو. ہاں، بات سب لوگ بات مت کرو. کون بات کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب بات کر رہے ہیں کہ محبوب بھائی؟ مولوی صاحب بات کرتے ہیں. تو آپ کیوں بات کر رہے ہو؟ مولوی صاحب بات کرنے دو نا. نا میں سنتا ہوں. ہاں، آپ سنتے رہو. ہاں ہاں مولوی صاحب بولیے. عقلاً ممکن بھی ذات بولے ہیں تو اسی کے تحت میں مفتی احمد یار خان رحیم صاحب فتویٰ دیے ہیں کہ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا امکان بھی مانے وہ بھی کافر ہے. ہاں، امکان بھی، نبوت کا امکان ماننے والا بھی کافر ہے. یہاں عقلاً ممکن امکان دو ہی، ہاں ممکن امکان دو ہی کے ہے نا. ممکن اور امکان دونوں ایک ہی ہے، لیکن عقلاً بتایا، عقلاً، شرعاً نہیں. تو نانوتی رحمۃ اللہ علیہ عقلاً بھی نہیں بولے نا، صرف کوئی فرق نہیں کون؟ پڑتا بولے. نانوتبی جو بولا، نانوتبی نے کیا کہا اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں سائل کا سوال پہلے سنیے. زاہد کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا وجود عقلاً ممکن ہے. وجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کا وجود، جیسا عیسیٰ علیہ السلام وجود میں ہے کہ نہیں؟ اوپر آسمان میں ہے. آسمان میں ہے تو وجود میں ہے نا، کہ موجود نہیں ہے؟ موجود ہے نا. حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام ہے، حضرت الیاس علیہ السلام ہے، حضرت خضر علیہ السلام ہے. تو یہ وجود بتایا جا رہا ہے. نبی قاسم نانوتوی نے کیا کہا؟ نبی پیدا ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو، تو نبی پیدا ہونے والا جو نیا کوئی نبی پیدا ہوگا، تو قادیانی تو یہی کہہ رہا ہے کہ نبی یہ قادیانی پیدا ہوا معاذ اللہ. اور یہاں بتایا جائے وجود کے سوال کی بات ہوئی، اور وجود کے جواب میں انہوں نے جواب دیا ہے ہمارے علماء نے کہ وجود تو ممکن، عقلاً ممکن ہے، اور ممکن کیا بالکل بالفعل ہے، اور پھر شرعاً ناممکن ہے. شرعاً ناممکن ہے. پہلے تو شریعت، ہمیں تو عقل دیکھنے کے بجائے شریعت دیکھنا چاہیے. اگر کوئی عقل سے بھی سوچنے لگے تو وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، حضرت الیاس علیہ السلام کا انکار نہیں کیا. اس میں گستاخی کی کون سی بات ہے؟ آپ بلا وجہ اپنے علماء دیوبند کے گستاخی کو بلا وجہ آپ جو ہے بچاؤ کر رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں.
नहीं, कासिम मुस्ताद। नानूतवी ने कहा नबी पैदा हो, जी मुस्ताद। बिल फर्ज कोई नबी पैदा हो। बिल फर्ज के माने क्या है में होगा मुस्ताद? तो बिल फर्ज का नतीजा क्या है? बिल फर्ज कह के कोई बात ऐसे अल्लाह अखज़ के के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी हदीस में अगर मूसा होते तो भी मेरी इत्तिबा करते बोले ना मुस्ताद। तो इत्तिबा करना लाजिम है। यहाँ इत्तिबा लाजिम, नतीजा क्या है बिल फर्ज का? यहाँ कोई पे भी सुनो, आपका आसमान क्या है बोलो? दोनों आसमानों पर ईसा अलैहिस्सलाम और एक नबी जिंदा है, हाँ और जमीन पर और इदरीस अलैहिस्सलाम भी और गालिबन इलियास अलैहिस्सलाम जिंदा है। हाँ तो यही बात क्या बोल रहे हैं नाज़मीन रहमतुल्लाह, अगर फर्ज कीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस जमीन में या किसी और जमीन में या आसमान में कभी कोई नबी हो तो वस्फ़े नबूवत में कोई फर्क नहीं पड़ता बोल रहे हैं। पैदा होने की बात है, कोई नबी पैदा हो फिर भी खातिमियत में कोई फर्क नहीं आएगा, फर्क नहीं आएगा। ये फर्क नहीं आएगा जो बात है ना, यही बात असल जुर्म है। जो बिल फर्ज मानना, कोई भी फर्ज मानना, उसमें जुर्म नहीं है। फर्ज का नतीजा ये देखिए, बिल फर्ज अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, लौकाना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। जी जी अगर आसमान जमीन में दो खुदा होते, जी मुस्ताद। ये फर्ज माना जा रहा है, दो खुदा होते, तो इसका जी। नतीजा क्या है? बिल फर्ज का नतीजा क्या है? आसमान जमीन दरहम बरहम हो जाता, जमीन आसमान बिल्कुल बर्बाद हो जाता। तो यहाँ बिल फर्ज जो गलत चीज बिल फर्ज माना गया, उसका नतीजा क्या होगा? गलत होगा। जी मुस्ताद। तो वहां जो गलत चीजें बिल फर्ज किया गया, उसका नतीजा अच्छा बताया जा रहा है, यही तो जुर्म है। बिल फर्ज में भी अगर कोई गलत चीज बताया तो गलत चीज का नतीजा गलत होगा, अच्छी चीज का नतीजा अच्छा होगा। तो उस वक्त लौकाना फीमा आलिहतुन गलत हो आपके बोले ऐसे। ये लौकाना फीहिमा आलिहतुन, ये आसमान जमीन में दो खुदा होते तो फिर क्या होता है? नहीं होगा ना मुस्ताद। हाँ? मिसाल के तौर पर दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दो खुदा हैं, ऐसा ही। हाँ, तो ऐसा ही दो खुदा अगर है तो उसका नतीजा क्या है? बर्बादी है, बर्बादी है। तो अब नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा हुआ माना जा रहा है, बिल फर्ज माना जा रहा है, तो उसका नतीजा क्या? अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए? बुरा होना चाहिए। तो यहाँ पर तो नतीजा ये बताया जा रहा है कि दो अगर हुजूर सल्लल्लाहु, मैं बोलूं जब आप चुप रहे, आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? सुकून से आप सुने, सुकून से सुनेंगे तब तो समझ में आएगा। वहां बिल फर्ज दो खुदा होते तो जमीन आसमान बर्बाद हो जाता। यहाँ बिल फर्ज माना जा रहा है कि बिल फर्ज हुजूर के बाद कोई नबी पैदा हो, फिर खातिमियत में कोई फर्क नहीं आएगा। तो कोई नबी पैदा होने का दावा करना जुर्म कैसे है? जब खातिमियत में कोई फर्क नहीं आएगा तो नबूवत का दावा करना जुर्म कैसे है? बिल फर्ज लिए बिल फर्ज कहे और बिल फर्ज ना कहे, बहरहाल गलत अल्फाज का नतीजा गलत होता है, सही अल्फाज का नतीजा सही होता है, यही होता है। बिल फर्ज का नतीजा क्या है? यहाँ कासिम नानूतवी ने क्या बयान किया है? वो हदीस से क्या मतलब? अगर मूसा जिंदा होते तो पैदा होने का मतलब है ना, रसूलुल्लाह मूसा बोले जिंदा होते तो शरीयत का इत्तिबा, मूसा जिंदा होना कोई बुरी बात नहीं है। मूसा जिंदा हो तो शरीयत का इत्तिबा उन पर लाजिम है। ऐसे ही बोल रहे हैं कि यहाँ तो कोई गलत लफ्ज नहीं है ना। मूसा जिंदा होते बिल फर्ज माना गया कि अगर मूसा जिंदा होते तो मेरे शरीयत को वो ताबेदारी करना लाजिम होता। मूसा अलैहिस्सलाम के शरीयत से हमारी शरीयत अच्छी है, हमारी शरीयत कामिल है। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत नामुकम्मल है, तो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत छोड़कर हमारे शरीयत पर अमल करना ये अच्छी बात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दोबारा जिंदा होना भी अच्छी बात है, अगर हो जाए तो हमारे शरीयत पर अमल करना भी अच्छी बात है। यहाँ अच्छी चीज का नतीजा अच्छा होता है, बुरी चीज का नतीजा बुरा होता है, समझे? तो यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अगर जिंदा होते, ये लफ्ज लेकर कासिम नानूतवी का जो लफ्ज है उस लफ्ज का बिल्कुल यहाँ मुनासिबत कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मुनासिबत नहीं है। तो फिर आप बिला वजह इस गुस्ताख हमें क्यों ठहरा रहे हैं? आपने तो उनको कहा, महबूब को कहा कि तुम्हारी किताब में भी गुस्ताखी है। हमारी किताब में कहीं अगर गुस्ताखी होते तो आपके उलमा हमें कुफर का फतवा क्यों नहीं दिया आज तक? नहीं, हमें शरीयत बात नहीं है, सब उनको बिज़ात छोड़ देते हैं। एक हमारे आप कलमा पढ़ते हैं तो एक निस्बत ले लेकर अनार कुफर में, तो एक देखकर मैं ये बहाना नहीं चलेगा, ये बहाना नहीं चलेगा। जब कलमा पढ़ते थे और ज़कात का इनकार किया, हजरत अबू बकर ने उनको काफिर कहा, उनसे जिहाद किया।
तो और एक बात कोई भी शरीयत की कोई चीज, कोई भी जरूरियात दीन का इनकार करने वाला काफिर होता है, और उसको काफिर कहना लाजिम है, उसको काफिर कहना ही ईमान का तकाजा है। हाँ, सहाबा इकराम ने बिल्कुल मुलाहिजा नहीं किया किसी भी गुस्ताख को, किसी भी काफिर को, किसी भी बद्दीन को काफिर कहने में सहाबा इकराम ने मुलाहिजा नहीं किया। देखा गया, हाँ कन्फर्म उन्होंने गुस्ताखी किया तो वो लोग काफिर हैं। हुसामुल में 3 इबारत तहज़ीरुन्नास की नकल के है ना मुस्ताब। हाँ पहली बात में, अगर बिलफर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी कोई और नबी हो, हाँ जिस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खातम रहना बदस्तूर बाकी रहता है बोले हैं, जैसा कि जो आसमानों पर जिंदा है और जमीन पर जिंदा है, इसलिए आपका खातम होना बदस्तूर बाकी रहता है। ये भी साबित किए हैं ना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह। तो साबित, ये तो खत्म नबूवत का इनकार कासिम नानवी ने किस लिहाज से किया? नबी के बाद कोई नबी पैदा होने को यहाँ लाजिम ठहराया, और शुरू में जो ताज़िरुन्नास के शुरू में लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, ये सिर्फ आवाम का ख्याल है। जमाने के एतबार से हुजूर आखिर में तशरीफ लाए, इस वजह से हुजूर आखिरी नबी हैं, ये सिर्फ आवाम का ख्याल है। देखिए शुरू की इबारत क्या लिखा हुआ है, हाँ है मेरे पास। अहले फहम पर रोशन होगा, तकद्दुम या ताखुर जमानी बिज़ात कुछ फजीलत नहीं, जी बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी सिर्फ आवाम का ख्याल है। जी मुस्ताब। तो हजरत अबू बकर का ख्याल क्या था? जब मुसैलिमा कज़्ज़ाब, वहाँ 1200 सहाबा शहीद हुए, 1200 सहाबा जहाँ शहीद हुए मुसैलिमा कज़्ज़ाब को ख़त्म करने में, हजरत अबू बकर ने भेजा कि जो नबूवत का दावा करे वो काफिर है, उसके साथ जिहाद करना फर्ज है। हालांकि उस वक्त यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, दूसरे मजहब वाले थे, उनसे जिहाद नहीं किया। सबसे पहले जिहाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत में, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सरपरस्ती में जो जिहाद हुए, एक तो मुनकिरीन ज़कात पर जिहाद किया, मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ, और दूसरा ख़त्म नबूवत के हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिहाद किया। तो हजरत अबू बकर का ख्याल यही है, हुजूर आखिर में तशरीफ लाए, हुजूर के बाद कोई नबी आना नामुमकिन है। अब कोई नबी आए तो हुजूर की खातिमियत में कुछ फर्क ही नहीं आएगा। हुजूर तो खातिम नबीयीन है। मुसैलिमा जैसा 1000 दावा करते फिरे, क्या फर्क पड़ता है? खातिम नबूवत पे फर्क नहीं पड़ता। हजरत अबू बकर ये सोच के बैठे रहते। जी मुस्ताब, ठीक है मुस्ताब। और एक बात मुस्ताब, आप बोल रहे हैं खास रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबूवत के मुनकिर आप बोल रहे हैं ना। हाँ। और एक बात मुस्ताब, उनकी किताब है हुज्जतुल इस्लाम, गालिबन जाने होंगे। हाँ। हुज्जतुल इस्लाम में हजरत बोल रहे हैं, जैसे बादशाह को खातमुल हुक्काम कह सकते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल कामिलीन, खातमुल नबीयीन कह सकते हैं। हजरत खुद अपना अकीदा बयान कर रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम सफा 150। एक जगह एक अकीदा बयान करे, दूसरी जगह उसी के खिलाफ अकीदा बयान करे, और दोनों को आप सही मान रहे हैं। दोनों को सही मानना कैसा मुमकिन है बोलिए? आप कासिम नानवी ने, आप सुनिए, मैं बहुत सारे अच्छी किताबें लिखा। एक किताब में अगर आपकी माँ बहन को गाली दे दूं तो क्या आप हमारी जितनी अच्छी किताबें हैं सारी अच्छी किताब को आप तस्लीम करोगे और मुझे अच्छा मानोगे या बुरा मानोगे? एक बंदा 1000 अच्छा काम करता है, एक काम बुरा करता है और बुरा काम साबित हो जाता है, तो वो बंदा अच्छा है या बुरा है? फल कड़वा है तो कहाँ भी दबाएंगे कड़वा ही निकलेगा मुस्ताब। हजरत के हर एक किताब में ऐसा निकलना है कि कुफ्र अल्लाह के आखिर में नहीं। हालांकि हर एक गुस्ताख के हर किताब में गुस्ताखी होना जरूरी नहीं है। गुस्ताख साबित होने के लिए एक गुस्ताखी काफी है, और कासिम नानवी ने वहाँ 3 गुस्ताखी किया है। 3 गुस्ताखी किया है। तहज़ीरुन्नास में कासिम नानवी ने 3 जगह गुस्ताखी किया है, और आप कह रहे हैं कि कड़वा चीज हर जगह कड़वा होना लाजिम। हर मिसाल हर जगह फिट नहीं होता। समझे? ये मुनाज़िर अजीबा में हजरत अपना अकीदा बयान किए हैं, मेरा ईमान दीन है, बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और नबी का होने का एहतिमाल नहीं। जो तो ऐसे 1000 बातें हो, लेकिन खातिमियत ज़मानी का जो इनकार किया है, वो इनकार एक जगह साबित हो गया। जब तक उस जगह से तौबा नहीं किया, जब तक उस जगह से तौबा नहीं करेगा कि यहाँ पर मैंने गुस्ताखी किया, मैं तौबा करता हूँ,
अब बाकी तो बोल रही ना मुझसे। और दूसरी जगह देखो तहज़ीर नास में 17 सफ़े में, औरों की नबूवत रसूलुल्लाह का फैज़ है, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत किसी का फैज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिले नबूवत मुख्ततिम हो जाता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और उम्मत ये है, तो ऐसे ही मानता है नबी और वो अंबिया भी है। कासिम नानुतुबी ने खातमियत वसफी मानता है। खातमियत ठीक वसफी है। कहते हैं हुजूर के सदक़े में सारे नबियों को नबूवत मिली। फिर मुसाफिर क्या बात, वैसा आदमी कैसा इनकार करेंगे मुसाफिर? सोचो मुसाफिर, तो ये आपके अकल कह रहा है, लेकिन किताब में तो साबित है कि ये गुस्ताख है। हमारे समझने में तो ऐसे बोलेंगे तो किताब आला में हजरत किताब से साबित हो रहा है, और ऐसे आदमी कैसे गुस्ताखी कर सकता है? गुस्ताखी किया है बोल के दिखा रहा है, किताब में दिख रहा है कि ये गुस्ताखी किया है। फिर आप कह रहे हैं ऐसे आदमी इतनी सारी अच्छी बातें किया है। वही मैं मिसाल दे रहा हूँ। आप ठीक है। सारी जिंदगी तहज्जुद पढ़े और जी कहीं जी एक जगह किसी लड़की को आप छेड़ दे, तो क्या जी आप सारी जिंदगी तहज्जुद पढ़ने को लोग मानेंगे? आपके आप जहाँ इमामत करते हैं वहाँ के लोग जी। मानेंगे कि ये साल हमारा भर 10 साल से यहाँ इमामत कर रहे हैं, ये तहज्जुद गुजार है, हमेशा शरीयत के पाबंदी किया है, एक लड़की को छेड़ दिया तो अब ये सब नहीं देखा जाएगा, ये नेक मुत्तकी परहेजगार ही माना जाएगा। और बुराई एक तो बात एक दिन ही पकड़ा जाता है, क्योंकि हर इंसान बुराई छुपकर करता है। आदत होने की वजह से कभी बुराई में फंस जाता है और बुराई उसका साबित हो जाता है। और नेक इंसान बनने की हर इंसान दिखावा करता है। हाँ, नेकी दिखता है, नेकी दिखा के करता है, गुनाह छुप कर करते हैं। इसलिए गुनाह जब जाहिर हो गया, एक गलती जाहिर हो गया, तो उस इंसान को गलत माना जाता है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक चोर पकड़ा गया। वो चोर ने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं पहली बार चोरी किया हूँ। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि तू एक झूठ बोलता है, अगर एक बार पहली बार चोरी किया तो अल्लाह ताला पकड़ा ही नहीं देता तुझे, क्योंकि अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गलती को छुपाता है। जब हद से ज्यादा हो जाता है तो अल्लाह जाहिर करता है। एक बार कोई चोरी करे, अल्लाह जाहिर नहीं करता, समझे? अपना अकीदा दिखा रहे हैं मुसाफ भाई, पता हो मैं क्या बोलते अपना हैं? अकीदा तहज़ीरुन नास के पेज नंबर 2 में कासिम नानुतुबी ने दिखाया, पेज नंबर 34 में, पेज नंबर 43 में, 3 जगह पर उन्होंने गुस्ताखी की। कासिम नानुतुबी ने उसने 3 जगह पे गुस्ताखी की। आप 1000 दलीलें दे, पहले ये 3 गुस्ताखी का तौबा दिखाइए। अगर मैं बिल फर्ज आप एक गुस्ताखी करे तो आपके चाहने वाले, आपके मुसल्ली आपको कहेंगे कि नहीं आपने गलती किया, तौबा करो। जब आप तौबा नहीं, आप कोई कुफर बक दे, कोई गुस्ताखी कर दे और आप बिना तौबा के आप नमाज पढ़ाए, जानकार आदमी आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे जब तक आप एक गलती से तौबा ना करो। जब कासिम नानुतुबी तौबा साबित कीजिए कि ये 3 जगह जो गुस्ताखी किया है, तीनों गुस्ताखी से उन्होंने तौबा किया था, तब उसको रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं। और अगर गुस्ताखी से तौबा नहीं किया तो उसको रहमतुल्लाह अलैह कह नहीं सकते, क्योंकि ये कुफर साबित हो रहा है। जी मुस्ताब, अहकाम शरीयत जाने हैं मुस्ताब, इरफान शरीयत। हाँ, ये इरफान शरीयत, अहकाम शरीयत, बताइए उसमें क्या लिखा है? इरफान शरीयत सफा नंबर 80 पर 4 पे लिखा हुआ है मुस्ताब। क्या लिखा है? आला हजरत से सवाल किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद नबी होते तो पिराने की रहमतुल्लाह अलैह, तो हजरत से सवाल किया मुस्ताब। तो हजरत ने जवाब दिए, और उनके अगर नबूवत खत्म ना होती तो हुजूर पाक गौस रज़ी अल्लाह नबी होते। हाँ, तो अगर नबूवत खत्म ना होती तो हुजूर के बाद उमर नबी होते। अगर नबूवत खत्म नहीं होती, लौकान बादी नबियन लकान उमर। तो ये तो हदीस में अल्फाज हैं। ये हदीस कहाँ से लाए मुस्ताब? अगर खत्म नबूवत ना होती तो हुजूर पाक गौस आज़म नबी होते। बहुत सारे नबूवत के सिफात जो कामिल मोमिन होते हैं ना, हाँ, कामिल मोमिन होते हैं। अल्लाह ताला नबूवत के जो ऐलान कराने से पहले उनकी नबूवत की सारी सिफातें उनके अंदर पाई जाती है। और नबी के जो सच्चे आशिक हैं, नबूवत के नबी वाली सिफात औलिया इकराम में मौजूद होते हैं, लेकिन नबूवत का दरवाजा बंद है, नबी कोई हो नहीं सकते। ठीक है, यहाँ देखो मुस्ताब क्या बोले, नबूवत खत्म ना हुई तो हुजूर पाक रज़ी अल्लाह नबी जब उमर को माना जा रहा है, कुफर नहीं हो रहा है। हाँ, आगे सुनिए सर, अगर आपने मफहूम शर्ती सही जायज इतलाक है, जायज तक बोले हैं मुस्ताब। क्या सुनिए, अपने मफहूम शर्ती पर सही और जायज इतलाक है, शर्ती एतबार से भी जायज है, जायज भी बोले हैं।
तो आला हजरत के शागिर्द कहाँ है? रहमतुल्लाह अलैह भेजिए वो इबारत भेजिए, इरफान इबारत शरीयत भेजिए। जायज कहीं कहीं नहीं माना गया। नबुवत अगर बताया गया है और अगर नबुवत का दरवाजा बंद नहीं होता तो हजरत जी। उमर नबी होते। आप ठीक है। सुनिए बात सुनिए। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को अगर माज़अल्लाह कोई नबी माने इस वक्त जी। तो काफिर होगा या नहीं होगा? होगा काफिर। काफिर हो जाएगा ना। तो जितने जी। ये हदीस को मान रहे हैं तो जी। क्या वो नबी मान रहे हैं? तो जायज नहीं बोले ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो जायज बोल यहाँ रहे भी जायज नहीं बोले। आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ इबारत और आपने कुछ भी नहीं है वहाँ। सुनिए, अगर नबूवत खत्म ना होती तो हुजूर गौस पाक रजी अल्लाह अन्हु भी नबी होते, अगरचे अपने मफहूम शर्ती पर सही जायज इतलाक है। तो आप इबारत भेजिए, समझ नहीं पा रहे इबारत तो। हाँ, उसके बाद क्या बोले वो आप पहले भेजिए, बाद में बात कीजिए। पहले मुझे भेजिए। तुम बोलेंगे तो ताविलात पेश करेंगे मुसावा ताविलात क्या? मैं अभी जितनी बातें मैंने किया, कौन सी ताविलात पेश किया? गैर जरूरी कोई ताविलात पेश किया मैंने? अब मैं बोला तो जायज भी लिखो है, ऐसा जायज बोल आप इबारत भेजे ना। आप कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं इबारत? आप पहले भेजिए, भेजिए। तुम्हारा भेज तुम है, तुम भेजो है। नहीं अभी आप उनको भेजिए, महबूब भाई को भेजिए। महबूब भाई मुझे फौरन भेजेंगे। अभी देखकर, मेरा नेट चालू है। हाँ, अभी मैं देखकर उसका जवाब देता हूँ। आप पहली इबारत का तो आपने कासिम नानुतुबी को गलत मान लिया ना? नहीं मुसाब हरगिज़ नहीं माने तो फिर दूसरी इबारत लेके क्यों आ रहे हैं? पहले वो इबारत पहले आप बताइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी सिर्फ आवाम के ख्याल में हुजूर आखिरी नबी है? नहीं मुसाब, अगर समझेंगे ना तो वैसे बोलेंगे। समझाइए फिर। वो पहले कासिम नानुतुबी की जो तहजीरुन नास पेज नंबर 5 उसमें जो लिखा हुआ है वो पहले मुझे समझाइए। हजरत बोलते हैं कि अवाम का ख्याल है रसूलुल्लाह को जो मर्तबा मिला आखिरी में आने से मिला है, ऐसा अवाम समझे, ऐसे बात नहीं है। ये तो नहीं है। यहाँ इबारत में क्या लिखा हुआ है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिर में आए हैं, जमाने के एतबार से हुजूर आखिर में तशरीफ लाए, इस वजह से हुजूर खातमुन नबीयीन है। मगर अहले फहम पर रोशन होगा तकद्दुम या ताखुर जमानी में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। हुजूर आखिरी नबी है, आखिरी नबी है। आवाम का ख्याल है हुजूर आखिर में आए, ये खातिमुन नबीयीन हुजूर आखिर में आए, इस वजह से हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर खातिमुन नबीयीन है। ये सिर्फ आवाम का ख्याल है। और उम्मती मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं। नबी उम्मती से मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं। बाकी रहा अमल, उसमें बसा औकात बज़ाहिर उम्मती मुसावी होते हैं, बल्कि बढ़ जाते हैं। और एक मसला लेके सब वो बात के हाँ, ये जो दो बातें कुफर है कासिम नानुतुबी का, उस कुफर को आप कुफर से तौबा करने के बजाय, उसने तो तौबा नहीं किया, बगैर तौबा के मर गया। आप तो कम से कम तौबा करके अपने लिए जन्नत बनाए। आप क्यों जहन्नम में जा रहे हैं उसके खातिर? नहीं मुसाब, ऐसी बात नहीं मुसाब। उसकी वजह से आप क्यों जहन्नम में जा रहे हैं? या तो फिर ये दोनों बातें, जो नबी से उम्मती को आगे बढ़ा रहा है तो उसका आप दिफा कर रहे हैं। नहीं, वो तसल्ली के साथ। आप तो लगता है कासिम नानुतुबी का कलमा पढ़े हैं, नबी का कलमा नहीं पढ़े, वरना नबी के खातिर कासिम नानुतुबी को ठोकर मार देते। आप दूसरी गैर जरूरी चीजें लेके आ रहे हैं। उसमें भी जो आपने पहले इबारत मैंने पढ़ के बताया, उसमें तो वही बताया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस वक्त आसमान और जमीन में कहीं भी वजूद में होना, तो वजूद में तो है, साबित किया मैंने। इसमें इबारत में कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको गलत नजर आ रहा था। उसलिए फर्क नहीं पड़े बोले हजरत, उसलिए फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है मुसाबी ना, उसलिए कहाँ फर्क नहीं पड़ता? उसमें कासिम नानुतुबी की इबारत सरासर कुफरिया है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हो साहब? ठीक है मुसाब, लास्ट की बात है मुसाब, मुफ्ती खलील अहमद खान कादरी बरकाती, ये कौन से मसलक है मुसाब? उसको मैं जानता नहीं। हमारे आला हजरत की बात कीजिए, हमारे सुन्नी उलमा की बात कीजिए। और सुन्नी है मुसाब? सुन्नी नहीं है वो, उसके बारे में मैंने सुना। वो देवबंदी जो है सुन्नी बनकर सुन्नियों को गुमराह कर रहा था। अरे मदरसे खुद पढ़ाए हैं मुसाब, ये बरेली मदरसे में। हमारा दारो मदार उलमा अहले सुन्नत और इस ज़माने में आला हजरत की तशरीहात। अगर बरेली में पढ़ाया, बरेली में पढ़ा और आला हजरत के दामन को छोड़ दिया, आला हजरत के नजरिया को छोड़ दिया, वो हमारा नहीं है। पहले पढ़ाया, फिर बहक गया, फिर उसका दलील लेके आ रहे हैं। जैसा ताहिरुल कादरी,
20 साल पहले पक्का सुन्नी था, जब वो कुफर बका, ईसाइयों को मोमिन कहा, तो हम लोगों ने ठोकर मार दिया उसको। अच्छा, मौलाना फरंगी महली कौन है मुसाब? फरंगी महली वो तुम्हारे देवबंदी है। अरे रे, आला हजरत के पक्के दोस्त है ना मुसाब? दोस्त थे तो दोस्ती, जब कासिम नानूतवी पर कुफर का फतवा नहीं दिया अशरफ अली थानवी पर, तो आला हजरत ने, तुम्हारी किताब में खुद लिखा हुआ है मुताला बरेलवियत में कि फरंगी महली को काफिर कहा, आला हजरत ने काफिर कहा। अनवार मजहरिया पढ़े मुसाब? अनवार मजहरिया, अनवर मजहरिया पढ़ा। बस उसके बाद आला हजरत ने जब उसको मौका दिया कि वो तौबा कर ले, अनवर मजहरिया में लिखा है आला हजरत ने दोस्ती बरकरार रखी। दोस्ती बरकरार कब तक रखी? थोड़े दिन, जैसे अभी आप पहली बार मुझसे मिले, पहली बार मुझसे बात कर रहे हैं, तो आपको समझने के लिए थोड़े दिन मौका दूंगा, वरना आज ही मैं काफिर कह दूं आपको, आपके साथ में कतई ताल्लुक कर दूं, तो आपको समझ में कब आएगी? समझ में आने के लिए थोड़े दिन मौका दिया जाता है, हाँ, ताकि अच्छी तरह समझ ले। इसी तरह आला हजरत ने फरंगी महली को थोड़े दिन मौका दिया था, उसके बाद काफिर कहा। खुद आपकी किताब में भी लिखा हुआ है फरंगी महली को आला हजरत ने काफिर कहा। आपकी किताब में कुछ है मुसाब? जी, आपकी किताब में फरंगी महली को आला हजरत कुफर का फतवा लगा है, कौन सी किताब में लिखा है? हमारी किताब में मजमूई तौर पर यह लगाया है कि जो भी अशरफ अली थानवी को काफिर ना कहे वो काफिर है। लेकिन हाँ, सब जो भी में सब आ गया, मन शक्का फी कुफरी वाज़ा बिही फकद कफरा, वो भी आ गया। थोड़े दिन मोहलत इसलिए दिया गया, दोस्ती बरकरार रखा थोड़े दिन, ताकि उसको समझ में आ जाए। थोड़े दिन हरगिज नहीं, आखिर तक है मुसाब। आखिर तक कहाँ लिखा है? कहीं नहीं है, आखिर तक कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। खुद आपकी किताब में लिखा। आपकी किताब मानोगे या हमारी किताब मानोगे आप? आपकी किताब है ना, क्या होगा? आपको मानना चाहिए ना। हमारे ताविल तो यही है कि आला हजरत ने जो फतवा दिया कि जो भी अशरफ अली थानवी को काफिर नहीं कहेगा वो काफिर है, क्योंकि अशरफ अली थानवी ने नबी के शान में गुस्ताखी किया है। यह हमारे फतवा मजमूई तौर पर मुकम्मल ये है। और दूसरी बात, आपकी किताब में जब है, आपके 1-2 किताब में नहीं, 3 किताबों में आपके लिखा हुआ है कि फरंगी महली को आला हजरत ने कुफर का फतवा दिया है। आप मानो, फिर आप बिला वजह क्यों हमारे साथ इस बारे में बहस कर रहे हो? नहीं, वो फतवा नहीं, हो गया, वो बात हो गई खत्म। आपकी किताब में है, आप मानते हो या नहीं मानते हो? हम जब तक वजाहत से नहीं होंगे तो नहीं मानेंगे। आपकी किताब आप मानते हो? मानेंगे, मानेंगे तो मानो, फिर वजाहत जिसने किताब लिखा है उससे वजाहत ले लो। आपकी किताब की वजाहत आप ले लो। हमारे नजर में हमारे नजर में जो भी आला हजरत के फतवा ना माने वो गुमराह है। जैसा कि हमने ताहिरुल कदरी को कहा, इसी तरह आपने जिसका नाम लिया उसके बारे में कहा, और इसी तरह आप भी आपके फतवे को अच्छी तरह मानो। जी साहब, और एक बात रही साहब, इसका जवाब क्या होगा? अगर नबूवत खत्म ना हो, हुजूर गौस आज़म नबी हो जाए, अगर क्या अपनी मफहूम शर्ती पर सही हो जाए, आप इबारत भेजो। अभी तक क्यों नहीं भेजा आपने? मैं भेज दूँ, बात कर रहे हैं, भेज नहीं पाया। भेज दो, वो समझ कर उसका अगली बार इबारत भेज देंगे। हाँ, बात काल में रहे सर। हाँ, तो वो जो जवाब दिया उसका जवाब ले लो, और जो इबारत भेज रहे हो उसका इबारत अगली बार देंगे। भैया वहाँ पर भेजी नहीं भैया? आया नहीं, मेरे को आया नहीं जी। आया, देखो आया, आने दो, मैं देखकर नाश्ता करके फिर कॉल करता हूँ। मैं तीसरी इबारत भेजा है। जी हाँ सर। वो तो साइल का सवाल है, और सवाल का जवाब जहाँ नीचे लिखा हुआ है वो ना मुकम्मल है। आगे के पेज अगर भेजेंगे तभी तो बात मुकम्मल होगी। पूरी मुकम्मल है साहब, इसमें कहाँ मुकम्मल है? मुकम्मल यह है कि अगरचे अकलन मुमकिन हो, मगर नीचे लिखा हुआ है, मगर लिखा है, उसके बाद क्या है? उसके बाद का इबारत भेजो। इरफान शरीयत में साहब, इरफान शरीयत है तो बाद में मैं किताब लेके तो नहीं घूम रहा हूँ। आप एतराज आप किए, मुकम्मल आपको जवाब देना पड़ेगा। अकलन मुमकिन का हो गया साहब, ये दूसरी बात है। उसके बाद क्या लिखा है कि बेशक मर्तबाए आलिया रफिया हुजूर पुरनूर रदी अल्लाह ताला अन्हु जिल्ले मर्तबाए नबूवत है। यानी हर जो वली होते हैं नबूवत के साया, जिल्ले नबी मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल। ये साइल के सवाल के जवाब में हुजूर क्या फरमा रहे हैं? अगरचे मफहूम शर्ती पर सही वो जायज इतलाक है, क्योंकि जो कामिल वली होते हैं
वो नबूवत के परतू होते हैं, यह नबूवत हाँ, का जायज है। है। हाँ कोई बिल्कुल। नबी के नबूवत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, अगर नबूवत खत्म ना होती तो, जी नबूवत खत्म ना होती तो हजरत उमर नबी होते। ये बात जायज है कि नहीं है? ये बोले रसूलुल्लाह जायज है कि आप बोल रहे हैं ना जायज है कि लिखा है खुद किताब में। अब हजरत उमर नबी होते, जी ये बात जायज है कि नाजायज है? ना होते बोले ना आपका लौकाना बाग नबी है लकाना उमर। इबारत में हदीस में है, अगर मेरे बाद नबी होते तो हजरत उमर उमर होते। होते। तो ये बात जी जायज है या नाजायज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के एतबार से जायज है, लेकिन जायज नबूवत है तो किसी हजरत उमर को नबी मानना जायज है या कुफर है? कुफर है। कुफर है। तो जी हजरत उमर को नबी मानना जैसा कुफर है, तो जी हजरत गौसे पाक को भी नबी मानना कुफर है। लेकिन कुफर है। तो लेकिन जी ने बच्चों मतलब को लिखो है जायज है बोल रहे हैं। अभी यहाँ पर हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा जा रहा है। ये साहिल का सवाल है कि सवाल अपनी जगह पे सही है। ये जो अल्फाज है, ये अल्फाज कहना कोई हराम नहीं है, कुफर नहीं है। जी यहाँ बोल क्योंकि रहे अगर कुफर होते, ऐसा कहना कुफर होते तो हजरत उमर नबी होते। ये अल्फाज जो हदीस में हम मानते हैं कि हुजूर के बाद नबी होते तो हजरत उमर होते, तो नबुवत का दरवाजा बंद ना होती तो गौसे पाक नबी होते। तो ये इबारत सही है, लेकिन नबी मानना कुफर है। आप बोल रहे ना अगर से आपने मफहूम शर्ती तो जायज है। मफहूम जायज क्या है है? जायज इतलाक है बोल रहे हैं साहब। यहाँ नईमुद्दीन हाँ, तो मुराद हजरत उमर नबी होते, ऐसा उमर के अंदर नबुवत के अंदर जो सलाहियत है, काबिलियत है, हजरत उमर के अंदर है, ऐसा मानना क्या नाजायज है? जायज है। जायज नहीं बोले हसन कहाँ बोले जायज। हजरत उमर जायज के बोले अंदर आला हजरत बोल रहे जायज बोल रहे हैं। तो नईमुद्दीन मुराद बहादुर रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं किताबुल अकाइद सफर नंबर 17 में, जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी की नबूवत को मिलना जायज समझे वो भी काफिर हो जाता है। नबूवत मिलना जायज, नबूवत का दरवाजा, नबूवत खत्म ना होती, ये जो अब लफ्ज है वही ना, नबूवत खत्म ना होती तो नबी हो सकते थे। अब नबूवत खत्म हो गई। लेकिन आगे चल गया ना मुस्ताब, अगर से मफहूम शर्ती सही जायज इतलाक है, जायज तक बोल रहे हैं। लफ्ज एक तो लफ्ज जायज होना, और एक जो है किसी शख्सियत को नबी मानना। नबी मानना कुफर है, नबूवत का इम्कान मानना भी कुफर है। लेकिन हजरत गौसे पाक रदी, फिर बात मुकम्मल होने से पहले बोल रहे हैं, क्यों इतना जल्दबाजी कर रहे हैं? क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? जरा सुकून से इत्मीनान से सुनिए। अब दोनों बातें एक जैसा है। हजरत उमर अगर हुजूर के बाद नबी होते, हजरत उमर नबी होते, ये बात जायज है। लेकिन हजरत उमर का नबी मानना कुफर है। इसी तरह गौसे पाक अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना होती तो गौसे पाक भी नबी हो सकते। तो जो साहिल का सवाल है, सवाल अगर ये मानना कुफरिया होते तो हजरत उमर के बारे में भी मानना कुफर होते। सवाल जायज बोल रहे हैं। क्या जायज बोल रहे हैं? अपने मफहूम शर्ती पर सही और मफहूम जायज शर्ती के एतबार से तो हजरत उमर नबी होते, ऐसा मानना क्या कुफर है कि जायज है? अगर वैसे ही हमारा कासिम नानवी बोले, अगर वैसा नहीं बोले ना, कासिम नानवी ऐसा कैसे बोले? कासिम नानवी ऐसे कैसे? कासिम नानवी की इबारत है कि सिर्फ आवाम का ख्याल है हुजूर आखिरी नबी है। और हुजूर के बाद कोई नबी पैदा हो, यहाँ पैदा होना तो माना नहीं गया। हुजूर के बाद नबी पैदा हो, खातमियत में कुछ फर्क नहीं आएगा। वो भी नबी पैदा होकर नबूवत का ऐलान करता रहेगा और हुजूर आखिरी नबी रहेंगे। अब कितने भी सवाल कर ले, कितने भी नबी पैदा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बोले पैदा कैसे होंगे? और झूठे दावा करना है मिर्जा कादियानी पैदा वो नबी है। नबी पैदा हो, यहाँ कहा गया नबी पैदा हो, झूठा पैदा नहीं हो। तो इसका मतलब कासिम नानवी और आप लोग जो है मिर्जा कादियानी को नबी मानते हैं। हरगिज़ नहीं मानते, हम लोग मानते मुस्तफा।
मिर्जा कादियानी को आप नबी मानते हैं, तो तभी तो नबी पैदा हो बोल रहे हैं। हरगिज में फतावा क्या बोलते हैं तालिफात रशीदिया में कुफ्र को मानने वाला तालिफात रशीदिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ तहजीरुन नास पर बात हो रही। आप तालिफात रशीदिया क्यों लेके आ रहे हो? पहले तहजीरुन नास के इबारत कुफरिया है या नहीं ये बोलो। नहीं सुनो, तालिफात रशीदिया में क्या लिखा है रशीद गंगोही ने? आपसे मफहूम समझा रहे हैं, हम भी ऐसे तहजीरुन नास समझा रहे हैं आपको। तहजीरुन नास से मुझे बताओ, हुजूर के बाद नबी पैदा हो तो हुजूर खातिमुन नबीन कैसे रहेंगे? कोई नबी पैदा हुआ, हुजूर आखिर में तशरीफ लाए। मौलवी साहब सुनो, बोलो सर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने के एतबार से आखिरी नबी, खातमुन नबी, जिनके दो माने हैं। खातमुन नबी जिनके कितने माने हैं? दो माने हैं, एक ज़मान और एक सिफात। हुजूर सिफात के एतबार से खातिम है, मतलब क्या है? जितने नबियों पर नबूवत की मोहर लगी, जितने नबियों को नबूवत मिली, सारे नबियों को नबूवत हुजूर के सदक़े में मिली। इस वजह से बात मुकम्मल होने, दोनों मफहूम पहले बयान करने दो। बोलो। पहला मफहूम यह है, हुजूर खातमुन नबीयीन इस एतबार से हैं कि सारे नबियों को हुजूर के सदक़े में नबूवत मिली, यह है खातिमियत वस्फ़ी। और दूसरा है खातिमियत ज़मानी, हुजूर आखिर में तशरीफ लाए, सारे नबियों ने हुजूर के ऐलान, सारे नबियों को अल्लाह ने भेजा ही हुजूर के ऐलान के लिए कि मेरे बाद नबी आने वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, कुरान में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर की सिफात बयान किया, मौजूद है। तो सारे नबियों को अल्लाह ने हुजूर के ऐलान के लिए भेजे, और हुजूर के बारे में सारे नबी सवा लाख अंबिया इकराम अपने नबूवत के ज़माने में अपनी उम्मत को हुजूर की सिफतें बताए, हुजूर की शान बयान किए। अब आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ताकि जितने शान बयान सारी उम्मत ने सुना, अब वो शान अपनी आंखों से देख भी ले। ये आखिरी नबी की उम्मत की एक खुसूसियत है। ये उम्मत हुजूर की शान, वो नबी सारे नबियों की उम्मत सिर्फ सुने हैं, इस उम्मत ने देख भी लिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, चांद को दो टुकड़ा करते हुए, सूरज को पलटाते हुए, दरख्तों को कलमा पढ़ाते हुए। इस वजह से हुजूर आखिर में तशरीफ लाए। तो आखिर में तशरीफ लाना भी एक सिफात और एक खुसूसियत है और एक शान है, क्योंकि पहले ऐलान करा के अल्लाह ने भेजा है। तो ये दोनों एतबार से हुजूर आखिरी नबी है, ये सारी उम्मत का कहना है। लेकिन कासिम नानूतवी कहता है हुजूर आखिर में तशरीफ लाना ये कोई सिफात कामिला नहीं है, ये कोई खुसूसियत नहीं है। हुजूर आखिर में तशरीफ लाए हैं, ये सिर्फ आवाम का ख्याल है। खुसूसियत नहीं कहा है मुस्ताफ। हुजूर आखिर में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है, क्यों हुजूर आखिर में तशरीफ लाए, ये सिर्फ आवाम का ख्याल है। किताब के 5 नंबर पेज में लिखा हुआ है। सबने आखिरी है, मगर अहले फहम पर रोशन होगा तक़सीम। मगर कहकर कोई बात जब कहा जाता है तो पहले वाले अल्फाज के खिलाफ मगर कहा जाता है। जैसा कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह, कोई माबूद नहीं के इनकार, कोई माबूद नहीं, इस लफ्ज के रद में इस लफ्ज के खिलाफ दूसरे लफ्ज लेने के लिए बीच में मगर आता है। इस्तिस्ना होता है, इस्तिस्ना मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु दोनों के खिलाफ होता है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ होता है। बीच में हर्फ इस्तिस्ना आता है, इसका मतलब पहले वाले अल्फाज का बाद वाले अल्फाज का बरखिलाफ होगा। तो यहाँ पर मगर है ना, लफ्ज़ मगर से ही सारे मामला गड़बड़ कर दिया कासिम नानूतवी ने। आप समझे मुस्ताफ, ऐसा गलत समझ सकते हैं मुस्ताफ। क्या आप सही समझाओ ना, मगर कहने का क्या मतलब होता है, जरा मुझे समझाओ। मगर मतलब समझाओ। आवाम का फहम के बारे में समझा रहे हैं, अगर समझेंगे तो आखिर में आने वाले की क्या फजीलत होगी। अगर मगर कहने का क्या मतलब होता है, आवाम के ख्याल में हुजूर आखिरी नबी बाई माना कि हुजूर का जमाना सारे नबियों के जमाने के आखिर में है। मगर जब बीच में आता है, इस्तिस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु और मुस्तस्ना, तीनों में क्या फर्क है, जरा तीनों समझा दीजिए, तब समझ में आएगा कासिम नानूतवी की इबारत। मगर अहले फहम पर रोशन मगर का मिसाल दीजिए। मगर लफ्ज इस्तिस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु और मुस्तस्ना, तीनों के मिसाल दीजिए। आप आलिम है ना? जी मिसाल। आप आलिम है तो इस्तिस्ना का मिसाल दीजिए। इस्तिस्ना कब लाया जाता है?
इस्तिस्ना अलग करने के लिए लाया जाता है। अलग करने के लिए ना, तो एक इस्तिस्ना, जो लफ्ज इस्तिस्ना बीच में आता है, जी आगे की इबारत और पीछे की इबारत दोनों एक दूसरे का खिलाफ होता है या दोनों एक दूसरे का मुवाफिक होता है? खिलाफ होता है। खिलाफ होता है। तो यहाँ खिलाफ, अहले फहम का अकीदा और अवाम का अकीदा दोनों एक दूसरे का खिलाफ होगा। अब इसलिए लफ्ज इस्तिस्ना बीच में लाया गया है। अहले अवाम के ख्याल में हुजूर आखिरी नबी इस मायने में है कि हुजूर का ज़माना सारे नबियों के ज़माने के आखिर में है, ये अवाम का ख्याल है। अब अहले फहम का ख्याल है ना, ये अवाम के ख्याल के खिलाफ होगा। अब इस वजह से बीच में इस्तिस्ना लफ्ज लाया गया। मगर क्या है, लफ्ज इस्तिस्ना है। अहले फहम बोल तो कौन मुसा? अहले फहम बोले तो अवाम के अलावा जो होते हैं वो अहले फहम है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप अवाम है, आप अवाम है या अहले फहम है? बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले फहम है। आप अहले फहम है, तो आपका अकीदा ये नहीं होना चाहिए कि हुजूर का ज़माना आखिर में है। और सारे जितने उलमाए देवबंद है, उलमाए देवबंद जो है अहले फहम है, और जितने उलमाए देवबंद से पहले गुजरे हैं, सहाबा इकराम और दीगर औलिया इकराम, ये सब अगर आप अहले फहम मानते हैं तो आपकी नज़र में ये है कि हुजूर का ज़माना आखिर में नहीं है, हुजूर के बाद भी नबी आ सकते हैं। तभी तो बीच में जो मगर लफ्ज है ना, मगर लफ्ज दोनों एक दूसरे के खिलाफ लाने के लिए बीच में मगर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। समझाना चाहते हैं यहाँ क्या बोलना चाहते हैं? तो इस्तिस्ना, आप आलिम हैं तो लफ्ज इस्तिस्ना नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास सुनिए पहले। तो मुस्तस्ना मिन्हू के जो कवायद है, हाँ, मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हू में मुस्तस्ना मिन्हू सब नहीं सही है बात नहीं। तो यहाँ पर मुस्तस्ना मिन्हू क्या है? मुस्तस्ना मिन्हू है अहले फहम पर रोशन होगा तकद्दुम और ताखुर ज़माने में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। अवाम के ख्याल में हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर आखिर में तशरीफ लाए इसलिए खातमुन नबीयीन है, ये बताया गया है। तो कासिम नानूतवी की इबारत कुफरिया, सरासर कुफरिया है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप मुस्तस्ना मिन्हू समझा दीजिए मुझे। मेरे पास ये 5 नंबर पेज से मुस्तस्ना मिन्हू समझा दीजिए। आप बोलिए मुस्तस्ना मिन्हू, फिर से मुझे समझाइए। अब जो इस्तिस्ना होता है, जिसके इस्तिस्ना करके बिल्कुल वो अलग हो जाता है, उसका मफहूम अलग होता है। हाँ, तो इस्तिस्ना किस चीज से इस्तिस्ना किया गया? अहले फहम को अवाम से इस्तिस्ना किया गया। अब अवाम का ख्याल है कि हुजूर आखिर में तशरीफ लाए इसलिए खातमुन नबीयीन है, और अहले फहम का अकीदा इसके खिलाफ होगा, तभी तो बीच में इस्तिस्ना है। वो अकीदा बयान करूं सब में क्या बोल रहे हैं? आपका अकीदा, आप अहले फहम है, आप अहले फहम है, तो आपका अकीदा, कासिम नानूतवी का कहना है कि आपका अकीदा ये नहीं कि हुजूर आखिर में तशरीफ लाए। किताब में क्या है? किताब में इबारत आप पढ़िए, 5 नंबर पेज में इबारत पढ़िए। आप सल्लल्लाहु का जमाना अंबियाए सादिक के जमाने के बाद और आप सल्लल्लाहु सब में आखिर में भी है। 5 नंबर पेज में कासिम नानूतवी ने जो लिखा है वो पढ़िए। वही आप नहीं पढ़ा, वो आपने नहीं पढ़ा, आप कोई दूसरा चीज पढ़ रहे हैं। नहीं सुनूंगा, वही पढ़ रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो बोलिए, मैं भेज रहा हूँ आपको। नहीं मेरे पास है मुसाब, मैं अलग रख लिया मुसाब। तो 5 नंबर पेज आप पढ़िए। आप सल्लल्लाहु का जमाना अंबियाए सादिक के जमाने के बाद और आप सल्लल्लाहु सब में आखिर नबी हैं, मगर अहले फहम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ुर ज़माने बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। फिर मकाम मदह में वला के रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन फरमाना इस सूरत में क्यों कर सही हो सकता है? ये जो लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना बाई माना है कि आपका ज़माना अंबिया साबिक के ज़माने के बाद और आप सब में आखिरी नबी है, मगर अहले फहम पर, मगर जो है ना, ये गौर से दीजिए, अहले फहम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ुर ज़मानी में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। जो मगर के अगले जो अल्फाज हैं और मगर के पिछले जो अल्फाज हैं
دونوں الفاظ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ابھی آپ کا عقیدہ حضور آخر میں تشریف لائے یہ ہے یا پھر اہل فہم کا عقیدہ آپ کا عقیدہ ہے؟ دو عقیدے کے بیچ میں مگر لایا گیا ہے. اہل فہم کے نزدیک حضرت یہ بتانا چاہ رہے ہیں اگر کوئی آپ سے سوال کرے پہلے آنے والا کا ویلو ہے یا آخری میں آنے کی ویلو، آپ کیا بولیں گے؟ تو میں تو وہی بتایا کہ سارے نبیوں سے اعلان کروایا اللہ نے، بعد میں حضور کو بھیجا تاکہ حضور کی شان سارے انبیاء سابق بھی سن لے، دیکھ لے، ان کی امتی بھی دیکھ لے، اور آخری نبی کے امتی بھی حضور کی شان دیکھ لے. یہ حضور کے آخر میں آنا بھی ایک شان ہے. حضرت سمجھا رہے ہیں کہ اگر آخر صرف ہمیں ایسا سمجھیں گے رسول اللہ آخری میں آئے اس لیے مرتبہ ملا ہے، ایسا نہیں. حضرت فرماتے ہیں عوام کا خیال ہے کہ آخر میں آئے ہیں اس لیے حضور آخری نبی ہے، تو یہ تو عوام کا خیال اچھا ہے. اہل فہم کا خیال اس کے خلاف بیان کیا جا رہا ہے. اہل فہم کے ذریعے سے عوام کا انکار کیا جا رہا ہے، عوام کے عقیدے کا. عوام کا عقیدہ حضور آخر میں آئے ہیں اس لیے خاتم النبیین ہے، تو یہ عوام کا خیال اچھا ہے یا برا ہے؟ لیکن ایک طرف سمجھنا غلط ہے، دو طرف سمجھنا صحیح ہے. دونوں طرف سمجھائیے نا. ایک طرف تو ہے کہ عوام کے خیال حضور آخری نبی ہے، یہ اچھا خیال ہے یا برا خیال ہے؟ ایک طرف سمجھنا غلط ہے، دو طرف سمجھنا پوری صحیح. بات کا ایک بات کا جواب دیجیے مجھے، میرے صرف اتنا جواب دیجیے، مجھے صرف اتنا جواب دیجیے. حضور آخر میں آئے ہیں، حضور آخر میں آئے ہیں اس لیے حضور خاتم النبیین ہے، یہ عوام کا خیال ہے. تو یہ عوام کا خیال اچھے ہیں یا برے ہیں؟ صرف یہی سمجھنا غلط ہے. یہ صرف یہی سمجھ کے بعد میں آگے کا سمجھیں گے، آگے سمجھیں گے نا آگے کا بھی. مگر کے بعد آگے لفظ ہے، آگے جو مگر کے بعد جملہ ہے اس جملہ کو بعد میں سمجھیں گے. پہلے اتنا سمجھیے کہ عوام کا خیال یہ برا ہے کہ حضور آخر میں تشریف لائے اس لیے آخری نبی ہے. آدھا جواب دینے والے بنیں گے، برا نہیں ہوگا. تو پورا جواب آپ دیجئے، بتائیے عوام کا خیال اور اہل فہم کے خیال میں کیا فرق ہے، مجھے سمجھائیے. میں بتا دوں گا. حضرت بتانا چاہتے ہیں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں آنے سے خاتم النبیین صرف اسی اعتبار سے عزت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولن بھی نبی ہیں آخرن بھی نبی ہیں، دونوں سمجھنا. اس لیے یہ بہت بول رہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، یہ بھی ثابت ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 24 میں. قاسم نانوتوی بتانا چاہتے ہیں عوام صرف ایک ہی معنی سمجھ رہی ہے کہ آخری میں آئے ہیں اس لیے خاتم النبیین ہے. قاسم نانوتوی کیا فرماتے ہیں عوام ایک معنی سمجھنے میں، بلکہ اہل فہم کو روشن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی نبی ہیں اور آخری میں بھی نبی ہیں، دونوں بتانا چاہتے ہیں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تو وہ مفہوم یہاں نہیں ہے، وہ وہ نہیں ہے. اور دوسرا جو کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اس کا رد آپ کے علماء نے عبد الشکر کاکربی مختصر سیرت اس میں لکھا ہے حضور کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. قاسم نانوتوی فرما رہے ہیں نبوت بھی ابتدا آپ ہی سے ہوئی ہے، نبوت ختم بھی آپ ہی سے ہوئی، یہی بتانا چاہتے ہیں نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. آخر میں آنا، حضور آخر میں تشریف لائے، آخری نبی خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ آخری نبی ہے آخری نبی ہے تو آخر میں تشریف لائے اس لیے خاتم النبیین ہے. تو مگر کہہ کے جو دوسری بات، مگر کہنے کے بعد کیا ہوتا ہے، دوسری بات اس کے خلاف ہوتا ہے، اور اس کے خلاف ہے بھی، اس کے خلاف ہے بھی. اگر کوئی آپ سے سوال کرے آپ سے کوئی پہلے آنے والا فضیلت والا ہے آخری میں آنے والا فضیلت والا، آپ کیا کہیں گے؟ حضور کے بارے میں بات ہے یار، کسی کے بارے میں، حضور کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے. ہم بھی بول رہے فہم روشن کے بارے میں بول رہے ہیں. اگر آپ سے سوال اب عقل مند ہیں پہلے آنے والے کی فضیلت ہے آخر میں آنے والے فضیلت، عوام کے خیال میں حضور آخر میں آئے اس لیے آخری نبی ہے. کہ حضرت ابوبکر کا خیال یہ نہیں ہے حضور آخر میں تشریف لائے اس لیے حضور آخری نبی ہے. زمان کے اعتبار سے بھی حضور آخری نبی ہے، وسط کے اعتبار سے بھی حضور آخری نبی ہے. لیکن اگر کوئی سوال کرے اگر کوئی سوال کی بات نہیں، یہاں پر آپ یہ بتائیے قاسم نانوتوی کا کہنا ہے حضور آخر میں تشریف لائے اس لیے خاتم النبیین ہے، یہ صرف عوام کا خیال ہے، صرف عوام کا خیال ہے. مگر اہل فہم پر یہ نہیں ایک خیال ہے. اہل فہم کا بات یہ بعد میں بتایا ہے کہ اہل فہم کا کہنا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو، پیدا ہو، پھر بھی حضور آخری نبی رہیں گے، خاتم النبیین رہیں گے. یہ بات جو ہے قاسم نانوتوی سراسر کفریہ کہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ سمجھے، اس کے خلاف آپ سمجھا ہی نہیں پا رہے ہیں.
आप बोल ही नहीं पा रहे हैं। आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, सुनते ही नहीं आवाम है। के ख्याल में आप सुन हुजूर रहे ही आखिरी नहीं। नबी इस एतबार से है कि हुजूर का सुनने जमाना से- सारे मैं नबियों बोल के रहा हूँ, जमाने आप के सुनते आखिर ही में नहीं। है। मैं बोलना चाहता हूँ, सुनो अहले फहम बोल रहे हैं, आवाम बोल रहे हैं। अब मैं अहले फहम है ना, सब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप तो आवाम के ख्याल में जो हुजूर आखिरी नबी इस मायने में है कि हुजूर का जमाना सारे नबियों से आखिर में है, ये आवाम का ख्याल इस एतबार से हुजूर आखिरी नबी है, तो क्या ये आवाम का ख्याल गलत है? गलत नहीं, आधा जवाब से नहीं है, आधा जवाब देने के लिए आवाम का ख्याल आप गलत भी नहीं कह रहे, सही भी नहीं कह रहे, इसका मतलब आप फंस चुके हैं। आप इसलिए फंस अहले चुके फहम हैं। बोले, आवाम के अहले ख्याल फहम को आप बोले, सही भी नहीं कह रहे, गलत भी नहीं कह रहे हैं। आप कहेंगे कि आवाम का ख्याल ये गलत है, तब आप आगे बात करें। मौलवी साहब आपने जवाब, आप पहले कहें कि आवाम का ख्याल ये सही है या गलत है। एक तरह से सही समझे हैं, एक तरह से गलत समझे एक हैं। तरह से किसी तरह से भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यही ख्याल अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, यही ख्याल हजरत उमर का है, यही ख्याल सारे सहाबा का है। अब सारे सहाबा को आवाम मान रहे हैं, आपके उलमा अहले फहम है, और सारे सहाबा गलत है, सारे सहाबा आवाम में से है माज़अल्लाह। तुम समझ रहे माज़अल्लाह, समझ रहे हैं, फिर क्या समझें। आप बोले आवाम का, मैं 10 बार यही सवाल से आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं कह रहा हूँ कि आवाम के ख्याल में हुजूर, आवाम का ख्याल में हुजूर आखिरी नबी इस वजह से है कि हुजूर का जमाना सारे नबियों के आखिर में है। ये मेरे बात लेट नहीं बोल रहे मुसाफ, तुम बात कर रहे थे, मेरी बात सही था, 2 मिनट भी सही सुन नहीं पा रहे आप। सुनाइए। अब मैं बोल रहा हूँ, अगर अहले फहम है आप, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर कोई पहले आए और अगर कोई आखिर में आए, आप किसको इज्जत देंगे? बोलो, फजीलत किसकी है? आवाम के एतबार से, आपके एतबार से? तो हुजूर आखिर में आए सारे नबियों के नजर में, सारे नबियों ने हुजूर के नाम इज्जत से अपनी उम्मत में लेकर हुजूर की शान बयान किए, और हुजूर आखिर में आए, तो हुजूर की खुसूसी फजीलत हुई। अब दूसरे की बात, अगर कोई आए, अगर कोई आगे आए पीछे आए, वो बात नहीं है। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, हुजूर की बात सारी बातों से निराले हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में आए हैं, ये एक फजीलत, खास फजीलत है हुजूर आखिर में आना। आखिर में आना फजीलत है क्या मुसाफ? बिल्कुल फजीलत है, हुजूर आखिर में आना ही हुजूर की खास फजीलत है। और भी फजीलतें हैं, हुजूर की खुसूसी एक फजीलत ये भी है, हुजूर आखिर में आए, और हुजूर के आने से पहले सारे नबियों ने हुजूर का ऐलान फरमाया। कासिम नानवी उसी को साबित करना चाहते हैं। साबित नहीं करना, कासिम नानवी आवाम के ये खत्म नबूवत के अकीदे को, आवाम के अकीदा को धज्जी उड़ाया है, और आवाम के अकीदा को गलत बताया है, और हुजूर के बाद नबी आना मुमकिन बताया, नबी आना मुमकिन बताया है कासिम नानवी ने। ये कासिम नानवी का कुफर है। तुम्हारे हजरत दिखे हैं, जायज बोले हैं, आपके आला हजरत जायज कहीं नहीं बोले, वो बात का जवाब दे दिया, अगर वो बात का जवाब दे दिया। अगर जायज नबूवत को हमारे नजर में, अगर हुजूर के बाद नबी आना जायज है, तो फिर हमको काफिर कहने के बजाय आप हमें सलाम कर रहे हैं, हमारे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। काफिर बोले हैं, नाइमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह काफिर बोले हैं। किसको काफिर बोले हैं? जो ऐसा कहे कि नबूवत खत्म ना होती, तो अगर नबूवत मिलना को जायज भी समझे, जो जायज नबूवत मिलना कैसे, नबूवत खत्म ना होती तो नबूवत खत्म ना होती तो ये नबी हो सकते थे, वो नबी हो सकते थे जिनके कामिल, जायज समझे नहीं समझे, जायज समझे नहीं। अगर नबूवत खत्म ना होती, इसी लफ्ज में तो इनकार है, इसी लफ्ज में तो नबी आने का इनकार है। अब अगर नबूवत का दरवाजा खत्म ना होती, इसका मतलब क्या? नबूवत का दरवाजा खत्म, नबूवत का दरवाजा खत्म हो गया है, अब नबी नहीं हो सकता कोई। इसी लफ्ज में तो अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना होती, इसका मतलब क्या? बंद हो गया है, बंद होगा, यहाँ बंद हो गया है। बंद ना होती, अगर बंद ना होती, अगर बंद ना होती, ऐसे खास अगर किसी के बारे में कहा जाए, मौलवी साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनिए मुसाफ, समझ रहे हैं सर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम महबूब है। आपका नाम भी महबूब है? जी। अच्छा महबूब साहब, अगर महबूब साहब इंसान नहीं जानवर होते, तो यह लफ्ज कहने का मतलब क्या हुआ? महबूब साहब इंसान है, इंसान है माना जा रहा है, जानवर नहीं माना जा रहा है। अगर जानवर होते, यानी हुआ नहीं, जानवर होते, इंसान है, तो इसी तरह अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना होती, मतलब क्या? बंद है। आप किसी के बारे में, नबूवत किसी के बारे में आगे कहा जा रहा है, उसका मतलब यह होता है कि उनके अंदर नबूवत के अंदर जितनी खुसूसियात होती है, नबी के अंदर जितनी भी सिफतें होती है, सिफतें तो हैं,
لیکن نبی نہیں ہے. جائز بولے نبوت نا کی مصعب. صفات کا مطلب کیا ہے؟ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے. جی تو جی غوث پاک بھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے. نبوت کا نبی کے اندر کیا ہے؟ لالچ نہیں ہوتے، دنیا کے حرص نہیں ہوتے، طمع نہیں ہوتے، نبی کے اندر بری صفتیں نہیں ہوتے. تو غوث پاک کے اندر بھی بری صفتیں نہیں تھی. تو یہ سارے کمالات ہونے کے باوجود نبی نہیں ہے، کیونکہ اگر نبوت کا دروازہ بند ہو چکی ہے. یہ مانا جا رہا ہے، بار بار اسی کو آپ گھما پھرا کے قاسم نانوتوی کے کفر کا دفاع کر رہے ہیں. قاسم نانوتوی کے کفریہ عبارت کا آپ ہرگز صاحب آپ بول رہے ہیں نا اگر نہ ہوتی تو قرآن پھر نہیں ہے، ایسا ہی بول رہا. اگر ہوتے کوئی نبی تو رسول اللہ اگر کے فرق ہی لکھتا تھا. نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتی، اس کا مطلب کیا؟ بند ہے، ختم، بات ختم. بند یہاں پر بند نہ ہوتی، جیسا میں نے آپ کو مثال دیا کہ آپ اگر جانور ہوتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جانور نہیں ہے، انسان ہے. اگر ملتی تو جائز ہے، ملتی نا. آپ بول رہے نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتی، اسی لفظ میں، شروع لفظ میں ہی جب ثابت ہو گیا کہ نبوت کو ختم مانا جا رہا ہے، تو پھر آپ دوسری بات آپ کہنا بیکار ہے، دوسری بات کہنا ہی بیکار ہے. جائز کا مطلب کیا ہے پھر؟ جائز کا مطلب لفظ الفاظ کہنا جائز ہے. جیسا حضرت عمر نبی ہوتے ہوا نہیں، ہوتے کہنا جائز ہے، ہوتے کہنا کوئی غلط نہیں ہے، کفر نہیں ہے. سوال کرنا رسول اللہ صلی ہوتے اللہ علیہ کہنا وسلم حضرت عمر نبی ہوتے تو یہ کہنا کیا کفر ہے؟ نہیں ہے. کہاں کفر ہے؟ لوکانہ بعدی نبی غوث الاعظم کو تو حدیث میں مصطفیٰ وہ تو عوام کا سوال ہے، لیکن آخر میں یہ لفظ پورا مکمل عبارت میں آخر میں دیکھو کہ یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے. ہاں آخر میں لفظ یہ، اس کا جواب مکمل ہے. تم نے آدھی بات بھیج دیے ہیں، آدھی بات بھیج دیے ہیں، آدھی عبارت بھیج دیے ہیں. مکمل عبارت پڑھو، اس کے آخر میں ہے کہ یہ لفظ کوئی بھی کتاب میں، کوئی بھی صحیح عبارت میں موجود نہیں ہے. صرف عوام نے سوال پوچھا تو لفظی اعتبار سے یہ لفظ کہنا جائز ہے. جائز ہے. ہاں، جیسا حضرت عمر نبی ہوتے کہنا کیا حرام ہے، کفر ہے؟ حضرت عمر نبی ہوتے ایسا کہنا کیا ہے، کفر ہے؟ کیا ہے؟ اگر کوئی نبی پیدا ہوتے بولنا بتاؤ، کفر ہے. میرے بات کا جواب دے کے آگے بڑھو. حضرت عمر نبی ہوتے ایسا کہنا کیا ہے؟ کفر نہیں ہے. اگر خاص کفر نبی نہیں بولے ہے. اگر حضرت عمر کو نبی ماننا کفر ہے، لیکن ایسا کہنا کفر نہیں ہے. اسی طرح اگر دوسرے کو نبی ایسا کہنا اگر کفر ہوتے تو حضرت عمر کو کہنا بھی کفر ہوتے. اگر کوئی نبی پیدا ہوتے تو کیا تو کفر ہے مصطفیٰ؟ اگر نبی پیدا ہوتے، کہاں لکھا ہے؟ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں اگر قاسم پیدا نانوتوی ہوتے نے لکھا ہے کہ نبی حضور کے بعد کوئی نبی ہو تو بھی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا. پیدا ہو تو فرق کیوں نہیں آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا، اس لیے کہ رسول اللہ حتم پیدا ہو تو خاتمیت، جو پیدا ہوگا، نبی پیدا ہوگا لاسٹ میں، جو نبی پیدا ہوگا خاتم النبیین وہ ہوگا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ حضور کے بعد نبی پیدا ہوا، حضور کے بعد جو پیدا ہوا آخر میں، زمانے کے اعتبار سے وہ آخر میں ہے کہ حضور آخر میں ہے؟ جب آپ بولے اگر نہ ہوتے وہ تو حقیقت میں نہیں بولے تو ہمیں حضرت مثال کے طور پر بول رہے. اگر ہوتے مثال کے طور پر کیسے بول رہے ہیں؟ مثال کے طور پر تو نہیں بول رہے ہیں. یہاں تو آپ بول رہے ہیں حضور کے بعد نبی ہوتے تو بھی خاتمیت میں کچھ فرق نہیں آتا. آپ بولے نا اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضور وہ لفظ آپ حضور وہاں نبی مانا نہیں جا رہا ہے، یہاں پیدا ہونے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے مصطفیٰ، ایک بات دیکھیے سمجھیے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کسی بار بار رحمۃ اللہ علیہ نہ کہے، اچھی بات نہیں ہے. کیسے آپ کیسے بار بار، جب وہ نبوت ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اس کو بلا وجہ ختم، اس کو بلا وجہ آپ جو ہے رحمۃ اللہ کہ لعنت اللہ علیہ. آپ بول رہے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. اب میں کہہ رہا ہوں کسی کتاب میں دکھا، اسی کتاب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، بتاؤ، میں ہار مان لوں گا. دیکھیں، شیطان نے ابھی تک کروڑوں سال ہو گیا، ابھی تک ہار نہیں مانا. ہار ماننا، آپ کو ہار منانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل دینا کافی ہے، دلیل دینا کافی ہے. قاسم نانوتوی نے یہ کہا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہوا پھر بھی حضور خاتم النبیین ہے. اور مطلب یہ ہوا صفات کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، زمانے کے اعتبار سے حضور خاتم النبیین نہیں ہے. حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا ہو
پھر بھی हुजूर आखिरी नबी कैसे रहेंगे? खातम का मतलब ही होता है, खातम का मतलब होता है बस खत्म हो गया, आप नबूवत के महल में आखिरी ईंट लग गई है, नबूवत का महल मुकम्मल हो चुके हैं, अब कोई नबी नहीं आएंगे। फिर रसूलुल्लाह कैसे बोले अगर मूसा जिंदा होते तो मेरी इत्तिबा करते, रसूलुल्लाह कैसे बोले फिर? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जो फरमाए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम अगर जिंदा होते तो भी हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम मेरी इत्तिबा करते। ऐसे ही बोल रहे हैं, मूसा अगर ऐसे नबी ऐसे ही नहीं है पैदा यहाँ, होते, अगर पैदा होते तो ऐसा कोई ही फर्क नहीं पड़ता, बोल ऐसा रहे ही हैं। मैं पहले भी इसको अच्छी तरह समझाया, समझकर फिर भी अनजान बनते हो। नहीं समझिए आप, जैसे रसूलुल्लाह फिर बोले मूसा मूसा अलैहिस्सलाम होते, कोई अब भी, मैं सवाल कर रहा हूं, अगर मूसा पैदा होते फर्क अगर पड़ता का मतलब यहाँ, नहीं? अगर का मतलब है फर्ज करना, फर्ज हमें करना, हस्ती खासिम रहमतुल्लाह ने फर्ज किए हैं, अगर फर्ज बिलफर्ज करने का बोले, नतीजा फिर क्या है? बिलफर्ज बोले हैं, अच्छी मुस्ताद बिलफर्ज बोले हैं। बिल फर्ज आपको जूता मार दूं, बिल फर्ज हाँ। आपको जूता मारूं पब्लिक के दरमियान, आपकी इज्जत जाएगी या नहीं जाएगी? आप फिर आपका आला हज़रत कैसे बोला अगर बिलफर्ज है तो कुफर फर्ज कैसे लगाया? ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बोले हैं, वो बिल फर्ज कहने का मतलब ये है कि बिल फर्ज का नतीजा भी जहाँ अच्छे अल्फाज है अच्छा नतीजा होगा, बुरे अल्फाज है बुरे आप नतीजा बुरा होगा। समझेंगे तो बुरा ही होगा, आप अच्छे नहीं समझेंगे ना, बुरा समझ बुरा ही होगा। मैं बोल रहा हूँ किसी किताब में दिखाओ खासिम नानवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं माने हैं तो मैं मान लूंगा। आखिरी नबी का इनकार ही हुआ ना यहाँ। कहाँ हुआ? अगर कोई नबी पैदा हो फिर भी हुजूर खातमुन नबीयीन रहेंगे, हाँ रहेंगे, कितने भी दज्जाल आए, नबुवत पर कितने भी नबी पैदा हो तो कैसे खातमुन नबीयीन रहेंगे? अब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह 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 सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। यही तो कादियानी का अकीदा है, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, मतलब पैदा होने मतलब आएंगे ना, पैदा होंगे तो पैदा होंगे आप कह रहे हैं तो अस्तगफिरुल्लाह। कादियानी का यही कहना है, वो मसीह होने का, मिर्जा कादियानी मसीह होने का दावा किया है कि मैं मसीह हूँ, पैदा हुआ हूँ। असली जो मसीह है हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, वो आसमान से उतरेंगे, पैदा नहीं होंगे। मिर्जा का दावा है कि वो पैदा हुआ है लेकिन वो मसीह मौऊद है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बात सुनते नहीं तो फिर तो आपको मैं पैदा होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, बोले क्या है, किसके पेट से पैदा होंगे ईसा अलैहिस्सलाम? किसके पहले से पैदा नहीं होते? खासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह आप तो कहा है ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, पैदा हुए नबी के, नबी तो कासिम नानवी तो कहा, कासिम नानवी ने तो कहा नबी पैदा हो। तो बोले पैदा होने मतलब दज्जाल भी आया, पैदा होने का मतलब ही है नबी पैदा हो, और जब नबी पैदा होगा, जो पैदा होगा वो आखिरी नबी होगा। अब आखिरी नबी हो नहीं सकता, हुजूर के बाद कोई पैदा नहीं हो सकता नबी। तो कासिम नानवी ने नबी को पैदा होने वाला दूसरा नया नबी माना है, इस वजह से कासिम नानवी काफिर है। कासिम नानवी काफिर है। जरा गौर से देखो, दोनों इबारत में जमीन और आसमान का फर्क है, वहाँ का यहाँ जोड़कर बिला वजह कासिम नानवी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। जरा आप अगर बदनसीब नहीं है, आप अगर बदनसीब नहीं है, हम आपके जन्नत जबरदस्ती आपको दे नहीं सकते। आप बिला वजह जहन्नम की तरफ जा रहे हो, बिला वजह कासिम नानवी को मोमिन मानकर खुद के जहन्नम आप मोल रहे हो। आप तौबा करो। आप जो कासिम नानवी ने पैदा होने वाला नबी नया नबी माना है, इस वजह से कासिम नानवी काफिर है। और वहाँ गौसे पाक के बारे में, हजरत उमर के बारे में नबी माना नहीं गया, बल्कि ये बताया गया कि अगर नबूवत का दरवाज़ा बंद नहीं होती तो हजरत उमर नबी होते, लौकाना बादी नबीजन, अगर मेरे बाद नबी होते तो हजरत उमर होते। तो ये जुमला कोई आखिरी नबी मानना नहीं हुआ, आखिरी नबी किसी और को मानना मुमकिन नहीं माना गया, लेकिन कासिम नानवी की इबारत में मुमकिन माना गया है। अभी बात जितना मैं आपको जिंदगी भर बात करूंगा ना तो यही नतीजा निकलेगा, और आपको मैं इतना जबरदस्ती, आपको बिला वजह हट दर्मी, आपके हट दर्मी का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम्हारी है, हमारी क्या हट दर्मी है बताओ ना। कासिम नानवी ने जो 3 जगह पे, एक तो उम्मती को नबी से अफजल माना, दूसरे ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी माना गया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आवाम के ख्याल है, आवाम के ख्याल बताया गया, अहले फहम इसके खिलाफ बताया गया। ये सारी बातें कुफरिया है, और कासिम नानवी पक्का काफिर व मुर्तद है, और कासिम नानवी के कुफर में आप मुब्तला हो, आप भी पक्का काफिर व मुर्तद हो। तुम्हें भी काफिर है मुसाब। हमने कहा हमारा कुफर क्या है?
तो साबित करूंगा, फिर मैं कैसे साबित है? तो साबित तो तुम्हारे देवबंद के उलमा ने तो हमें काफिर नहीं कहा, फिर तो तुम्हें तुम्हारे उलमा काफिर न कहने की वजह से काफिर हुए फिर वो। नहीं साहब, तुम्हें गलत समझने के बाद से हदीस पाक में आता है हमको देखो हम 100 साल से तुमको काफिर कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई दारुल उलूम देवबंद से एक फतवा दे के बरेली भी काफिर मैंने हो। कहा हम जाहिल नहीं हूँ साहब, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पक्के हमें 99 कुफरी भी आई, एक मुसलमान निकले तो हमें कफर फतवा नहीं है दे। ये तो सबसे बड़ा बेवकूफी है तुम्हारा। ये कहा गया कि एक आदमी 99 कुफर करे फिर भी वो काफिर नहीं होगा। भाई एक कलमा है, कलमा के तो एक कलमा की बात तो यहाँ नहीं हो रही। एक कलमा में अगर 99 कुफर है और एक ईमान के पहलू है, तो यहाँ हमारी जो इबारत, अगर हमने माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमारी इबारत में कोई गुस्ताखी और कुफर है, वो कौन सी इबारत है जिसमें ईमान के पहलू है और कुफर के पहलू है? बताओ जरा। अब आप बताओ, शैतान के इल्म गैब है आपके पास? हाँ, शैतान के पास इल्म गैब है? आप बताओ इल्म गैब, आप बताओ पहले। आप बताओ शैतान के पास, मैं सवाल कर रहा हूँ, इल्म गैब है नहीं है? इल्म गैब, पहले इल्म गैब किसे कहते हैं वो बताओ जरा। इल्म गैब उसे कहते हैं अल्लाह बिला किसी वास्ते के, जिसको इल्म हासिल है उसके इल्म गैब कहते हैं। बिला किसी वास्ता के मतलब जी कौन से? ये किताब, ये जो इल्म गैब के आपने तारीफ की, कौन सी किताब में है? हमारा अहले सुन्नत वल जमात अकीदा है। इल्म गैब का ये जो डिफिनेशन है डिक्शनरी में ये नहीं है। इल्म गैब के जो इल्म गैब का डिफिनेशन है, इल्म गैब की जो तारीफ है, हवा से खमसा से जो हासिल न हो, बिला किसी वास्ता नहीं, हवा से खमसा के अलावा अगर कोई वास्ता है वो भी वास्ता ही। अब शैतान भी इल्म गैब है या नहीं है, मेरे सवाल का जवाब लो। तो आपकी किताब में है शैतान को इल्म मुहित हासिल है। आपके सवाल आपकी किताब में साबित करूंगा मैं। हाँ, आप किताब नूरुल इरफान कंजुल ईमान की तफसीर नूरुल इरफान मुसन्निफ अगर हकीमुल उम्मत आपके मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी साहब वल मुहसना के 150 तफसीर में लिखते हैं, मालूम हुआ कि रब ने शैतान को भी इल्म गैब दिया। माज़अल्लाह, शैतान को इल्म गैब है। इल्म गैब दिया बोल के माज़अल्लाह कह रहे हैं आप? हाँ, फिर कहा शैतान की इल्म गैब है, रसूलुल्लाह भी इल्म गैब बोले, अल्लाह से भी आलिमुल गैब बोले, शैतान भी इल्म गैब बोले, शिरक करना नहीं हुआ? अच्छा, तो फिर शैतान को अगर इल्म गैब माना जा रहा है तो शिरक होता है। तो आपके बराहीन कातिया में जो लिखा है, इसका जवाब दो पहले, इसका जवाब दो। इसका जवाब तो आपकी किताब में है। आपकी किताब से दो पहले। हमारी किताब में क्या दूं मैं? हमारी किताब में जो लिखा है सही है बिल्कुल। तो शैतान की इल्म गैब है। हाँ, कुरान में है। अल्लाह अकबर, कहाँ दिखाओ, साबित करो। कुरान में इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तराउनहुम, जो अल्लाह फरमाता है वो और उसकी जुर्रियत तुमको देख रहे हैं और तुम उसको नहीं देख रहे हो। शैतान पूरी दुनिया में जितने इंसान है सबको शैतान देख रहा है या नहीं देख रहा है? जी देख रहा है। इल्म गैब है वो। तो ये इल्म गैब नहीं तो फिर क्या है? जो आपके नजर से हवा से खमसा से जो चीज पोशीदा है उसको गायब कहा जाता है, आवाम के नजर से जो चीज पोशीदा है उसको गायब कहा जाता है। और वो गायब अगर किसी खास किसी को दिया जा रहा है, वो देख रहा है, तो वो गायब कहा जाएगा। कैसे कहा जाएगा? तो रसूलुल्लाह की इल्म गैब है नहीं है? बोलो, आप बोलो। रसूलुल्लाह को इल्म गैब है, शैतान भी इल्म गैब है, रसूलुल्लाह भी इल्म गैब है, दोनों। तो फिर इसमें क्या शिरक क्या हो गया? अब सिफात में शिरक कर देना, रसूलुल्लाह भी इल्म गैब है ना। आप शिरक में, इसका मतलब ये जो अकीदा है शिरकिया है और आप नहीं करते हो, है ना? अगर आपकी किताब में भी अगर यही बात साबित है तो आप मुशरिक हो जाओगे आप। जी बिल्कुल साफ अच्छा, तो अभी बराहीन, अभी सुनो बराहीन, आपकी किताब में आपकी जब पहले इसका जवाब दो। रसूलुल्लाह भी इल्म गैब बोले, नाउज़ुबिल्लाह शैतान भी इल्म गैब बोले, तो कहाँ तक साबित होगा? शिरक नहीं करना हुआ फिर ये शिरक किसे कहते हैं? किसी सिफात में साबित करना शिरक कहते हैं। किसी सिफात को साबित करना मतलब इनके अंदर भी एक सिफत है, उनके अंदर भी एक सिफत है। अच्छा, तो इंसान को अल्लाह ताला ने फरमाया वकानल इंसानु समीअन बसीरा, इंसान को अल्लाह समीअन बसीर बनाया। और अल्लाह फरमाया इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह समीओ बसीर है और इंसान भी समीओ बसीर है। तो शिरक हो गया। वो तुम्हें कहाँ से कहाँ दलाल देते हो? शिरक हो गया कि नहीं हो गया? आपके मफहूम के हिसाब से अल्लाह का बसीर है। एक साथ नहीं बोलना, गौर से आप सुकून से इत्मीनान से मेरी बात सुनो। 5 मिनट में जवाब आपको मिल जाएगा। जवाब हरगिज़ नहीं। मैं चुप हो जाऊं, आप ही बोलते रहो?
آپ یہ بول رہے نا آیت پیش کی ہے، میں بول رہا ہوں اس کا جواب دیجیے آپ لفظی مت کیجیے، آپ صرف میرے سوال کا جواب دیجیے. میں بول رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں جو صفات ایک کے لیے مانے دوسرے کے لیے ماننا شرک ہو جائے گا. آپ نے آیت پیش کیا تو میں پیش کروں گا، شیطان علم غیب نہیں ہے، میں ثابت کروں پھر قرآن سے. ثابت کیجیے. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب فی العذاب المہین. تب کیا ہے، شیطان کے بارے میں ہے کہ جنات کے بارے میں ہے؟ شیطان کی قسم ہے، مستعد جنات کی قسم ہے، انسان کی قسم ہے. نہیں، جنات کے قسم میں سے جو جنات سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں کام کر رہے تھے. شیطان جنات کی قسم ہے، کس کی قسم آپ بولو مجھے بتاؤ پہلے. انسان کی قسم ہے تو سارے انسان کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھو گے، الگ الگ رکھو گے؟ شیطان کس کی قسم ہے، جنات کی ہے، کس کی ہے بولو. شیطان اگر جنات کی قسم میں سے ہے تو سارے جنات کی بات نہیں ہو رہی. سارے جنات کا شیطان ہے؟ سارے جنات شیطان ہے؟ ابلیس شیطان کی بات ہو رہی ہے. ابلیس کے بارے میں قرآن کی آیت. اس کا مطلب آپ مان رہے ہو قرآن ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے. کیا ٹکرا بول رہے ہیں؟ قرآن میں جو بتایا گیا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، دوسری آیت آپ بتا رہے ہو. دوسری آیت آپ بتا. پھر میری بات مکمل. میں فون کاٹوں؟ محبوب بھائی سنیے، مجھے بولنے نہیں دے رہے. بولے میں بولوں تو آپ چپ رہے، آپ بولے تو میں چپ رہوں. جب دونوں کی بات میں بول رہا ہوں سنیے. آپ کا جو دعویٰ ہے، آپ کے دعوے کے حساب سے قرآن ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے، اور ایسا دعویٰ کرنا کفر ہے. آپ کے کفر پھر بات مکمل ہوئی نہیں میری. بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ میں بول کر چپ ہو جاؤں تب آپ بولیے. 1 گھنٹے سے تقریباً یہی آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہو. چلو بولو سر. اب میں بات مکمل کر کے چپ ہو جاؤں تب آپ بولیے گا. آپ بول کر چپ ہو جائیں گے تب میں بولوں گا. آپ کا دعویٰ ہے کہ معاذ اللہ قرآن ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے کیونکہ میں نے قرآن کی آیات پڑھی. پھر چپ ہو جائیے. پھر ابھی دیکھیے جھوٹ بات بول رہے ہیں. میں بات مکمل جھوٹ بھی بولوں تو آپ مکمل ہونے کے بعد آپ بولیے گا اپنی باری میں. آپ چپ ہو جائیے، بات مکمل میری ہونے دیجیے پھر آپ بولیے. جواب کتنا کا اتنا ہی دینا. نہیں جواب میں نے قرآن کی آیات پڑھا تو آپ بولیں گے میں ثابت کروں گا کہ جنات کو. تو چپ ہو جائیے نا، مکمل بات میری ہو جائے اس کے بعد آپ بولیے. جواب دے دیا میں، اس کا ہوگا اس کا جواب نہیں دے رہے، جواب ہوگا. پھر جواب کیوں نہیں؟ جواب قرآن کی آیات کے خلاف ہوا. پھر عالم الغیب فلا قرآن میں ہی اللہ نے قرآن کے خلاف قرآن میں ہی بولا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. تمہیں سمجھ رہے ہیں تمہارا عقیدہ ایسا ہے. سننے نہیں دے رہے تم خود بھی سننے نہیں دے رہے اور سن بھی نہیں رہے. غلط ایک ساتھ بولتے جا رہے، بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے بول رہے ہو. آپ غلط بول رہے ہیں، اس لیے میں صحیح بول رہا ہوں. غلط بول صحیح. اور دیکھو تمہاری ہر بات میری نظر میں غلط ہے، پھر بھی میں تمہاری بات کمپلیٹ سنتا ہوں. میری باری میں بولتا ہوں. اب میں بول رہا ہوں کہ تم بولو ہی مت، تم سنو، بات کمپلیٹ ہوگی تب تم بولنا. میں فون کاٹتا ہوں. پھر غلط بات کمپلیٹ ہونے نہیں دے رہا ہے، غلط بول رہے. تم پہلے میری بات کمپلیٹ نہیں سن رہے ہو. میں فون کاٹ رہا ہوں. لاسٹ 1 منٹ میں بولوں، میری بات کمپلیٹ ہونے کے بیچ میں اگر تم نے بولا پھر فون میں کاٹتا ہوں. فون کاٹوں یا بولوں؟ میں بولو. مولانا کی بات سنیں گے، کیا بول دیں گے مولانا؟ میں سنتے نہیں بولتے. چشتی حضرت کی بات سنیں گے، کیا بول دیں گے؟ انہوں کا دلیل میں سننا چاہتا ہوں. میں تم نے کہا کہ شیطان کو علم غیب نہیں ہے، اور اس کے جواب میں تم نے آیات پڑھا، اور میں نے کہا کہ شیطان کو علم غیب ہے، اور میں نے قرآن سے. پھر بیچ میں نہیں بولنا. تم نے کہا شیطان کو علم غیب نہیں ہے، اس کی دلیل تم نے دیا. فلما خر تبینت الجن، یا جن کی بات ہو رہی ہے، اور جن میں سے ایک خاص جس کو شیطان کہا جاتا ہے، میں نے اس کی بات کی. شروع میں بات ہوئی شیطان کے بارے میں. شیطان کے بارے میں جو آیات ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، پوری دنیا کے سارے انسان کو شیطان دیکھ رہا ہے، اور وہ کیا حرکت کر رہا ہے، ہر حرکت سے واقف ہے. دل کے راز کو بھی شیطان جانتا ہے. دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، دلوں کو پھراتا ہے. یہ سارے کیپیسٹی شیطان کے اندر ہے.
और तुम जो बता रहे हो जिन्नात, आम जिन्नात जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खादिम थे, उनकी बातें हो रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खादिमों की जो जिन्नात है वो जिन्नात की बात हो रही थी। अब वो जिन्नात के गायब नहीं है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लेकिन शैतान को गायब है। शैतान को अल्लाह ने सिफात दी है, हर इंसान के काम के जो इरादा है वो इरादे को भी शैतान जान लेता है और उस इरादे से फिराने की कोशिश करता है। आप दोनों, तुम्हारा जो दावा है कुरान के खिलाफ है। तुम जो मफहूम समझ रहे हो जिन्नात को, तुम जबरदस्ती शैतान बनाकर कुरान के खिलाफ तुम दावा पेश कर रहे हो। अब तुम जवाब दो इसका। बात खत्म हो गई। आप जिन्नात शैतान है, आपकी बात खत्म हो गई। हो गई, आप बोलो। अब मेरे बात पूरे सुनो साहब। अब मैं आपसे कहूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है तो आप क्या जवाब देंगे? इल्म गैब है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबी अहद, ही जवाब देंगे ना? हाँ। अब मैं आपको शहीदान से सवाल कर दूं, रसूलुल्लाह अल्लाह ताला इल्म गैब को जाहिर किए हैं, ऐसा इल्म गैब एक बात लाकर मुझे पेश करोगे शहीदान भी इल्म गैब है? पेश करो मुझसे। शैतान को इल्म गैब है ये तुम इनकार कर रहे हो? हाँ, नहीं है, इनकार कर रहा हूँ मैं। इनकार कर रहे हो तो इल्म मुहीत क्या है? इल्म मुहीत भी इल्म गैब में से है। सुनो, यहाँ तुम्हारे हजरत क्या लिखे हैं, रब ने शैतान को भी इल्म गैब दिया। इल्म गैब वाला लफ्ज में कुरान में दिखाओ शैतान को कहाँ है? इल्म गैब दिया है तो तुम इनकार कर रहे हो, तुम्हारे उलमा ने माना है तो तुम कैसे इनकार कर रहे हो? कुरान में तो साबित नहीं है। तुम्हारे कुरान में साबित नहीं है। मैं मानूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब दिए हैं तो अल्लाह ताला आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबि इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, जिस रसूल को चाहते हैं वो बोले हैं। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला इल्म गैब का लफ्ज शैतान के लिए इस्तेमाल किया है कुरान में दिखाओ। तुम जो रसूल को भी इल्म गैब मानकर तुम मुशरिक हुए हो। इल्म गैब में इल्म गैब की बात अल्लाह ताला इल्म गैब तुम जब रसूल के लिए भी मान रहे हो फिर भी तो तुम मुशरिक हो। बात मत करो साहब, मैं बात कर रहा हूँ शैतान के लिए लफ्ज इल्म गैब अल्लाह ताला कहाँ दिए हैं कुरान में दिखाओ मुझे। इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, इसमें कहाँ है इल्म गैब के लफ्ज नहीं है। अल्लाह ताला लफ्ज होना हर जगह सराहतन, कुरान को मानने के लिए थोड़ा अकल होना जरूरी है, थोड़ा इल्म होना भी जरूरी है। कुरान में एक इशारतुन्नस है, इबारतुन्नस है, दलालतुन्नस है, समझे? तीन तरह के। मेरे बीच में बात मत करो, मेरे बीच में बात करेंगे फिर नहीं उन्हें दलील देती है ना, दलील देती है ना। इशारतुन्नस दलालतुन्नस वो दलील देती है ना। इशारतुन्नस एक तो नस से सरी है इबारतुन्नस और दूसरा है दलालतुन्नस। ये इबारत इस पर दलालत करता है कि नबी को इल्म गैब है। इसी तरह ये इबारत दलालत करता है कि शैतान को इल्म गैब है। तो शैतान को इल्म गैब है मानना ये कुफर नहीं है, शिरक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे उलमा ने भी माना है। तुम पहले बराहीन कातिया में इल्म मुहीत जमीन व आसमान की हर चीज के बारे में इल्म रखना, इल्म मुहीत भी इल्म गैब के ही किस्म में से है। मैं बोल रहा हूँ किस्म मानना पड़ेगा ना, जब किस्म मानेंगे तभी तो। मैं बोल रहा हूँ क्या किस्म नहीं बोले किताब ये एक नंबर के बिल्कुल जाहिल है, इनको कोई भी दलील समझ में नहीं। आप देखिए किस्म छोड़ डालो, जब शैतान के किस्म में से जिन्नात जो है जिन्नात की किस्म में से शैतान है, तुम जबरदस्ती जो है जिन्नात को शैतान में किस्म में शामिल कर लिए। आप नहीं माने ना, आप ना माने, नहीं माने आप। तुम शामिल करके तुम्हारा जो उसूल है, उसूल बिल्कुल बेउसूली है। इसमें उसूल के अंदर उसूल का गला घोट रहे हो तुम। मैं बोला कि आप बोले आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैब का जो लफ्ज लिख रहा, लेकिन कुरान में तो इल्म गैब के लिए शैतान के लिए लफ्ज ही नहीं है। तो आप लफ्ज जहाँ एक जगह लफ्ज हो तो उसी कायदे के हर जगह लफ्ज ही हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फराइज कुरान से लफ्ज साबित हैं और बहुत सारे फराइज कुरान में लफ्ज साबित नहीं है। तो क्या जो लफ्ज साबित नहीं है उसको फर्ज नहीं मानते हैं? नमाज में जितने फराइज है, नमाज में जितने फराइज है, सारे फराइज क्या कुरान में लफ्ज टू लफ्ज साबित है? नहीं है। फिर भी लफ्ज फर्ज को बहुत सारे जगह फर्ज साबित है। हाँ, मेरे बात सुनो, मेरे भी से कई बात करें फिर मेरे बात सुनो ना, फिर मेरे बात कर रहे हैं फिर
चलो हर जगह हाजिर नाजिर जाना किसकी सिफत है बोलो? इल्म गायब पर ही बात टिके रहो, इल्म आप गायब बोलो पर इल्म हाजिर गैब ना, को साबित करो। इल्म चलो गायब तो चलो मुकम्मल हुई नहीं। आप बोलो कहाँ इल्म गैब शैतान के लिए सराहतन दिखाओ मुझे, जैसे अल्लाह ताला ने सराहतन दिखाया आलिमुल गैबी फला युज़हिर अला गैबिही इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, जिस रसूल से मैं पसंद करता हूँ इल्म गैब को मैं जाहिर करता हूँ, हम बोले हैं तो मैं बोलना चाहता हूँ आलिमुल गैबी फला युज़हिर इल्ला मिनश शैतान, ऐसे कौन सा आयत दिखाओ फिर। नऊज़ुबिल्लाह। अच्छा, ये सराहतन हर जगह मुतालबा करना तुम्हारा बेवकूफ़ी है, बेवकूफी बोल तो रसूलुल्लाह के बेवकूफ़ी लिए है, सराहतन क्योंकि करे। बेवकूफ़ी मैं इसलिए बेवकूफ है, बोल रहा हूँ अब तुम चुप साहब। रहो, तुम्हारी बेवकूफ़ी मैं जाहिर करूं, चुप रहो तब मैं जाहिर जाहिर करूंगा। कर मैं हरगिज तुम्हारी मेरे बात बेवकूफ़ी नहीं सुने, इसलिए आगे है बात करो। कि कुरान में बहुत आप सारे फ़राइज़, बिल्कुल साबित नहीं करें, आप कुरान बिल्कुल में साबित बहुत नहीं सारे करें। फ़राइज़ शैतान के ज़ाहिर लिए नहीं इल्म है। गैब है, शैतान के लिए इल्म गैब है, अस्तगफिरुल्लाह, रसूलुल्लाह की भी इल्म गैब है, शैतान को भी इल्म गैब है, तो वो तो दोनों फिर की तुम्हें एक अस्तगफिरुल्लाह बराबर कह कर के दिए। तुम अपने बुजुर्गों को काफिर कह रहे हो, तुम्हें तुम्हारे कुछ रशीद अहमद गंगोही को तुम काफिर कह रहे हो, तो है, रशीद अहमद हमारा गंगोही ने खुद हमारा माना अकीदा है, शैतान के लिए इल्म गैब। हमारा अकीदा है अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इल्म वाले रसूलुल्लाह है। तो फिर रसूलुल्लाह कुफर के है तुम्हारा, इल्म तुम्हारा ये किसी अकीदा तरह भी नहीं तुम्हारे करते, हिसाब से कुफरिया है। वो नहीं है। आप बोले तुम्हारे शैतान तुम्हारे की भी अकीदा, इल्म गैब तुम्हारे है। अशरफ अली आप थानवी, बोलो तुम्हारे आपस अशरफ अली थानवी ने में और तुम्हारे इस्माइल दहलवी ने तुमको काफिर कहा। फिर नहीं कहा आपको तुम मत बोलो अपने भाई, बुजुर्गों रसूलुल्लाह को की एक इल्म को गैब है मानो बोलते दूसरे हैं, को नहीं मान शैतान सकते। की भी इल्म गैब है, दो कैसे तुम हैं? ऊपर से तौबा कर देवबंदी, हम हैं तौबा कर। शैतान की भी इल्म गैब है बोलते हैं, रसूलुल्लाह की भी इल्म गैब है बोलते इल्म हैं, गायब कैसा होना, इल्म गायब होना, कोई बोला भाई, रसूल कैसे को इल्म बोला गायब है तो रसूल को जिस लिहाज नहीं से बोला इल्म गायब रसूलुल्लाह है की इल्म गैब वो है वो किसी बोलते और हैं, मखलूक शैतान को की नहीं इल्म है। गैब है, शैतान कितना बड़ा ये है, उसकी भी इल्म गैब कैसा तो है। तो इल्म जाती गायब, इल्म गैब आता इल्म गैब, इल्म गैब के दो किस्में है, जाती इल्म गैब आता इल्म गैब, अल्लाह उसको भी अता करा, हाँ अगर वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला अता करा, इसको आता अच्छा, इल्म गैब बोलते हैं। दिल की भेद को दिल की भेद जानना जानना, इल्म गायब है कि नहीं? वहाँ दिल की भेद क्या लिखने में, सिर्फ क्या लिखने बोल दो, दिल की भेद को मालूम हुआ जानना कि गायब शैतान है की या भी नहीं इल्म है? गैब है बोलती है, ऐसा बोलती है। दिल की भेद को अब जानना रसूलुल्लाह की गायब इल्म है या गैब नहीं नहीं है? बोले, रसूलुल्लाह की इल्म गैब बोले या वो शैतान बात की इल्म गैब आगे बोल दो, बात हो दोनों जाए बराबर कंप्लीट। कैसे है तुम्हें? आगे आगे दिल की बोल भेद को जानना गायब है या नहीं है? है, वैसे गायब है, गायब है, तो दिल की भेद को शैतान जानता है या नहीं जानता है? जानता है, यकीनन जानता है, तो फिर गायब जानना हुआ या नहीं हुआ? यकीनन जानता है। तो फिर अल्लाह दिया बोल के, वो अल्लाह ने शैतान को गायब दिया हमारी आजमाइश के लिए। शैतान की कोई कमाल नहीं है, शैतान की कोई अच्छाई नहीं है, शैतान के अंदर कोई भी फजीलत नहीं है, लेकिन हुजूर इम्तिहान को के गायब लिए दिया है, हुजूर हाँ को गायब दिया है, हुजूर की शान है। हाँ, शैतान को गायब दिया है, शैतान की कोई शान नहीं है, हमारी आजमाइश है। तो वही शैतान गैब को जो कैसा गायब हुआ? दिया है हमारी अल्लाह ताला आजमाइश है, शैतान को गायब देकर हमारे दिलों को वो फिराने की कोशिश करेगा, गुनाहों की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम गुनाहों की तरफ नहीं जाना है, हम गुनाह से बचना है, नेक काम करना है। शैतान जितना भी हमारे दिल में वसवसा डाले, शैतान के वसवसे से बचना है। तो हमारे आजमाइश के लिए शैतान को गायब दिया है। अब शैतान दिलों की भेद को जानता है, हदीस में हजारों हदीस में मौजूद है। बोलो एक हदीस बोलो, इल्म गैब लफ्ज ला के दिखाओ। तो जानता है तो जानता है। इल्म गायब लफ्ज होना जरूरी नहीं है, तुम्हारी बेवकूफ़ी है, हर जगह लफ्ज मांगते हो। मैंने जैसा बोला कि बुखारी शरीफ में बहुत सारे अहादीस की किताब में फ़राइज़ मौजूद है, कुरान में लफ्ज नहीं है। नमाज में जितने फ़र्ज है कुरान से साबित करो, बोलो। लफ्ज नहीं है, लेकिन हम फ़र्ज मानते हैं। बहुत सारे फ़र्ज है कुरान में साबित, कुरान में लफ्ज नहीं है, लेकिन हम फ़र्ज मानते हैं। अच्छी हो तुम्हारी किताब में आला फर्ज हजरत का की मुतालबा करना, लफ्ज का मुतालबा करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि गायब का जो इशारा मिला है, इन्नहु यराकुम हुआ व कबीलुहु मिन हैसु तरावनहुम, इस लफ्ज से साबित हो रहा है कि शैतान हमारे दिलों के भेद को भी जानता है, हमको वसवसा देता है, हम कहाँ क्या काम कर रहे हैं शैतान जानता है। अगर आप बोलेंगे तो आपके अकीदे के एतबार से सुनो साहब, रसूलुल्लाह की भी इल्म गैब बोलेंगे, शैतान की भी इल्म गैब बोलेंगे, तो जैसा अशरफ अली खान तुम्हें इल्जाम लगा है ना इनका इल्म रसूल जानवर में से, अगर नहीं बोले फिर भी लगा है ना इल्जाम, ऐसा में लगाएंगे तो आप क्या जवाब? इल्जाम है यहाँ अशरफ अली थानवी वो जुमला में, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, कोई मदरसे में तुम शायद पढ़े नहीं हो, क्या बताओ तुम। वहाँ एक ही जुमला में जहाँ मिसाल दिया है शैतान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने उसने शैतान से तशबीह दी है। अब यहाँ हम तशबीह थोड़ी दे रहे हैं, अलग अलग लिहाज से हर किसी को, बुरे इंसान को इल्म गायब शैतान को है, तुम भी मान रहे हो, तुम्हारे बुजुर्ग भी मान रहे हैं, नहीं मान रहे, तो दिखा दिया तो दिखाओ फिर। तो ये बराहीन कातिया में ये क्या है? दिखाओ क्या दिखाओ? पूरे दुनिया के
पूरी दुनिया के हर चीज का इल्म रखना, ये क्या गायब नहीं है? भाई सब बोलेंगे तो गायब अल्लाह में के आता पास नहीं, गायब में आता ही नहीं आता है पूरे पूरी दुनिया में। लफ्ज़ इल्म गायब दिखाओ। अब लफ्ज, फिर लफ्ज अभी बोला तो लफ्ज का मुतालबा करना बेवकूफ़ी है। अब अल्लाह ताला खुद लफ्ज का मुतालबा करना ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि हर फर्ज कुरान में अल्फाज में नहीं है। अगर मैं कहूँ 10 बार बोले तो 10 बार घुमा फिरा के वही आता है बेवकूफ़ कहीं का। अगर तौबा मैं कर साले गधे कहीं का बेवकूफ़ देवबंदी।